hallelujah. How many love the Lord Jesus? How many कितने are लोग प्रभु happy to यीशु be in मसीह the से प्रेम house of करते हैं God? और कितने लोग How many आनंदित are है प्रभु के ready for भवन the में word आकर of God? और कितने परमेश्वर के वचन के लिए Hallelujah. तैयार है। I हालेलुया। just want to thank मैं all of धन्यवाद you देना चाहूंगा saints in the सभी संतों sanctuary, के लिए जो यहाँ पर all the भवन में bride है around the world who have और dialed मसीह की in, दुल्हन all the जो सारे विश्व churches भर से who are सारी listening. कलीसियाएं God bless your जो heart. इस वक्त सुन रही है, I want प्रभु to आपके thank हृदय all को the आशीषित keynote करे। speakers who have been with और us सभी this प्रमुख whole वक्ताओं के लिए week. मैं धन्यवाद Amen. देता हूँ जो पूरे This is सप्ताह the भर हमारे last but साथ one रहे। service. ये This is the दूसरी penultimate service. आखिरी Hallelujah. सभा से पहले है और ये And tomorrow we have the closing महत्वपूर्ण सभा service. है और But कल today, हमारी समापन tonight, सभा होगी। we are लेकिन आज so रात privileged to हम बहुत have ही हमारा Pastor सौभाग्य है, David Gonzalez हमारे मध्य of में the पास्टर डेविड Florida गोंजाल्विस Christian है, Fellowship वो फ्लोरिडा in क्रिश्चियन फेलोशिप से Johannesburg, है, the Republic of जोहान्सबर्ग से, South Africa, जो साउथ अफ्रीका से है, to be with us, amen, and to bring forth the ताकि word हमारे of साथ God रहे tonight. और परमेश्वर का What a वचन हमारे लिए blessing. लेकर आया आज की रात। क्या ही आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। I believe with all my heart that God मैं पूरी Almighty, before the धीरज से foundation विश्वास of the करता हूँ world, कि परमेश्वर ने, ordained सामर्थ्य परमेश्वर that ने जगत Pastor की नींव डालने David से पहले Gonzalez bring tonight's पास्टर डेविड message. Amen. गोंजालेस को अभिषेक किया था कि आज We're रात के लिए praying for हमारे लिए him. We're संदेश को praying लेकर आए। that हम उनके लिए God will प्रार्थना कर anoint रहे हैं him, and he कि will, परमेश्वर उनको अभिषेक करे and he will deliver the word of और God हमारे tonight. लिए So let's परमेश्वर का वचन open our हमारे लिए वो देने hearts पाए। as we इसलिए अपने हृदय को welcome खोले Pastor और David जैसे हम Gonzalez पास्टर to डेविड take the गोंजालेस को service. यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वो Hey, आकर सभा को ले। Lord, the grace that caught my falling soul, he looked beyond. Sing it one more time. And saw my need. I shall forever, I shall forever lift my eyes to Calvary to view the cross where Jesus died for me. How marvelous. How marvelous the grace that brought my falling soul. Hallelujah. You look beyond. You look beyond my fault and saw my need. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के बहुमूल्य नाम में मैं आपके अभिवादन करता हूँ। क्या ही सौभाग्य है कि फिर से परमेश्वर के संतों के साथ एक साथ होना। Take your seats for a few minutes. आप कुछ समय के लिए अपने स्थान को ग्रहण कर Setting सके the platform. और ये मेरे लिए आपने इस मंच को तैयार किया। Look at that. Amen. मैं I used बहुत to ही tell you this is one आनंदित thing, था। singing and praising मैं इस God बात को is कहता हूँ like कि choir practice. Why not? गीत गाना और परमेश्वर की स्तुति करना If you बहुत ही get to अच्छी the बात other है, side, amen, there's a glory, क्योंकि आप hallelujah. जब वहां जाओगे वहां पे सिर्फ 24/7. महिमा और हालेलुया The 24 platform घंटे और won't सातों start दिन shaking वही anymore होगा, because people are worshiping and praising God. I'm not क्योंकि super sure परमेश्वर की about स्तुति और ministers. आराधना Maybe we लोग can करे। have a job when we get there. But the और singers, amen. सेवकों को मुझे नहीं पता Hallelujah. कि वहां पर हमारे लिए Amen. कोई So काम our होगा कि नहीं, teams, लेकिन amen. सिंगर्स के लिए, From my गीतकारों के लिए वहां पे काम है। family, the church, मेरी the पत्नी और Florida परिवार से और elders, कलीसिया amen. की ओर से मैं अभिवादन लाता हूँ। And just a great thanks to Pastor और ये Samuel. It's been पास्टर great सैमुअल के लिए भी अभिवादन और to ये host these प्रेरणा great के लिए meetings, amen. जो महान सभा का आयोजन Only करने पाए हैं। eternity will reveal unto us, amen, how this has helped और केवल अनंतता ही Pastor इस David बात को God's प्रकट करने blessings. पाएगी कि So I'd कैसी ये like to बातें also हुई and और honor मसीह का चरित्र को हमारे अंदर the तैयार करेगी। excellent और team, और ये बहुत ही अच्छी टीम जो behind टेक the टीम scenes making things work. जो दृश्य के पीछे And सारी our चीजों को sister Sidhu as well, काम कर रही है। और हमारी feeding us बहन with बहन everything असीडू that's भी done. हमारे लिए We really appreciate it, amen. खाने का प्रबंध किया और हम सभी की सराहना करते Let's हैं। give it up. आइए हम ताली बजाकर इनका स्वागत करें। Also to all the keynote speakers that और went सभी ahead, प्रमुख वक्ताएं laying the foundation and just जिन्होंने नींव डाली some of them इस are some सम्मेलन friends के of लिए। mine. कुछ तो मेरे मित्र हैं, Patriot from South Africa, amen. Our brother भाई Nolan, साउथ अफ्रीका से भाई नोलन, old friend of mine. भाई रॉन मिलवे और Pastor मेरे सब Peter पुराने as मित्र well हैं। from पास्टर years. पीटर So it was just काफी great, सालों amen, से मैं जानता हूँ, fellowship लेकिन around the Word of ये God, बहुत amen. ही अच्छा था कि And I believe परमेश्वर के that वचन के इर्द we गिर्द have सभा की तक कर a सके। divine appointment
और मैं जानता हूँ कि ये दिव्य हमारा अपॉइंटमेंट है। जैसे सैमुअल भाई ने कहा कि ये परमेश्वर ने जगत की नींव से पहले डालने से पहले ये सभा का आयोजन किया था, और यहाँ पर आप यूं ही नहीं आए, आपको तो पहले से ठहराया था, और अलौकिक के साथ आपका अपॉइंटमेंट था। मैं विश्वास करता हूँ इस बात को कि हम यहाँ पर यूं ही नहीं आए, अ, हम इसलिए आए ताकि हम उससे कुछ लाभ, हमको परमेश्वर के वचन से कुछ लाभ मिल सके, ताकि हम इस बात का एहसास करें कि हम कौन है और किस लिए है और हम कहाँ जाने वाले हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। हाँ, ये बहुत ही महान बात है। और एक अनाउंसमेंट है यहाँ पर कि रशिया अब एक ऐसी बड़ी मिसाइल को वहां पर उसने तैनात किया है, इसलिए ये सभा बहुत ही सटीक सभा है। इस सटीक सभा है एक सही जगह पर, ताकि हम अब दुल्हन को तैयार करने के लिए, ताकि आइए सारी चीजें तैयार है। मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर। 3 किस्म के लोग होते हैं, वे जो बातों को करते हैं, और हमने पास्टर सैमुअल को देखा है कि वो प्रेरणा के साथ कि ये सारी चीजों को घटित करते हैं, कि ये सारी चीजों को तैयार करना। और कुछ लोग होते हैं जो घटित होते हुए को देखते हैं, वो केवल देखते हैं। और कुछ होते हैं जो कि सो रहे और ये सोचते हैं कि क्या हो रहा है, और जब दुल्हन चली जाएगी बोले कि क्या सोच हो रहा है, यह अक्षर तो होना था, दुल्हन तो नहीं, लेकिन दुल्हन तो चली जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ कि सुबह इस शाम हम हम यहाँ पर वो लोग हैं जो इस बात को घटित होने करें। इब्रानी 11 में कहता है कि जब इन बातों के विषय में बात करता है कि जो विश्वास के योद्धा थे, जिसके लिए संसार योग्य नहीं था, और जब गिदियोन के और सिमसोन और डेविड और यिप्ता के बारे में जो बातें होती है, ये सब महान विश्वास के योद्धा थे। बाइबल बताती है ये, लेकिन ये हमारे बगैर सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसे कुछ समूह के लोगों को पहले से ही ठहराया है कि इस युग के लिए, इस संदेश के लिए आपको इस समय के लिए पहले से ठहराया हुआ है। आप अपनी जो प्रिविलेज है उससे नीचे मत देखिए। आपको मूसा के समय नहीं ठहरा था, नूह के समय नहीं, या पॉल ईरानियस और पेंटिकोस्टल युग के लिए, लेकिन आपको परमेश्वर ने इस समय के लिए रखा है, एक आखिरी। और आप ऐसे लोग हैं, आप आखिरी समय के लिए आपको रखा है। सब कोई खड़े हो जाते हैं, और जब आखिरी सभा होती है सब कोई खड़े होकर उनकी सराहना करते हैं, और आप समय के पर्दे के कुछ पार जब देखते हैं, पॉल कह रहा है कि हम आपके लिए रुके हुए। भाई ब्रैनम कह रहे कि मैं आप पर रुका हूँ। हालेलुया। वे हमारे बगैर सिद्ध नहीं बन सकते। हालेलुया। और और ये 7वां दिन है, और लेकिन 8वीं सभा है। पास्टर रॉनी मिलोवर ने इन्होंने शुरू किया कि सारी बातें तैयार है, और सोमवार को पास्टर प्रेरित आए, और अलौकिक कलीसिया का रैप्चर, अलौकिक कलीसिया की रैप्चर। हम हमेशा अलौकिक पर विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप गलत जगह पर है। आप देखते सुसमाचार ही एक अलौकिक है। ये हर चीज हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अलौकिक है, बातें हैं। हालेलुया। और हम अलौकिक परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम देखी हुई चीजों से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते। और जब परमेश्वर के घर में आप चलते, आप ऐसे ही नहीं आते, और आपको कहना चाहिए कि हाँ प्रभु मुझसे आज बातें कीजिए। और जब आप यहाँ से निकल जाते, तो आपको एक बदला हुआ व्यक्ति होना चाहिए। यही एक उद्देश्य है इस सभा का, कि हमें तैयार कर सके। परमेश्वर ने अपना कार्य किया है। हमने भाई पीटर को पिछले और सेवकों से सुना कि सारी चीजें तैयार है, लेकिन वो दुल्हन की रुका हुआ है। भविष्यवक्ता कहते हैं कि, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन खाली लौट कर नहीं आता है, लेकिन वो तो जिस काम के लिए भेजा है उसे पूरा करके आता है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को अभिषेक किया था एक दिन के लिए, कि परमेश्वर ये दुल्हन वचन जो है दुल्हन के अंदर है। और इसलिए अब इस भूमि पर ऐसे लोग हैं, एक संदेशवाहक के तले, वो संदेशवाहक के तले वो आखिरी आवाज होंगे आखिरी युग के लिए। इसलिए हम नहीं तो कौन हो सकते? यदि हम नहीं तो और कौन? आमीन। हालेलुया। यहाँ नहीं तो और कहाँ होगा? आमीन। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने इस सभाओं को पहले से नियुक्त किया है, ताकि कुछ जो बेशुद्धि वो हटाए, और हम इस बात को एहसास करें कि भाई और बहनों कि यही वो समय है। और पास्टर नोलन डोमिनिक ने कहा कि दुल्हन को सिद्धता में आना होगा, क्योंकि सिद्धता ही पुनरुत्थान को लेकर आएगी। आमीन। हालेलुया। और फिर उसके बाद अपोस्तल आए संदेश को लेकर,
उसने एक कोई ऐसा वंश नहीं, लेकिन अब्राहम का शाही वंश को लेकर आए। और आखिरी और पास्टर फर्नांड फेथ आखिरी बुलाहट, आखिरी आवाज को लेकर आए। जिसके कान हो वो सुने। बाइबल ऐसे बताती कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। इसलिए एक बुलाहट जारी है, आओ और अपने आप को तैयार करो। हम कहते हैं कि हम जब एयरपोर्ट में बैठे थे, जब आपकी आवाज को पुकारा जाता है और जब आपकी वो फ्लाइट को पुकारा जाता है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप अपनी पुकार को खो देंगे। और यदि फाटक बंद हो गए तो आप कितना भी ठोक खटखटाए तो वो बंद हो चुका है। इसलिए आपके टिकट पे दी जाता है कि बोर्डिंग टाइम ये है और गेट इस समय बंद होगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं कि फाटक अब बंद होने पर, इसलिए तैयार हो जाइए। सारी बातें पूरी हो चुकी है, इसलिए आपको केवल अंदर प्रवेश करना है, समय पर आपको अंदर प्रवेश करना है। हालेलुया। पास्टर चैंडलर ने हमको याद दिलाए कि कैसे तैयार होना है, कि बिल्कुल तैयार होना है। परमेश्वर की स्तुति हो। और इस सुबह और हम इस बात को सुनेंगे, सारी चीजों का अंत है, हमने सुबह सुना। इसलिए बाइबल बताती है कि रोम 8 में कि सारी सृष्टि करहा रही है, तड़प रही है, रुकी हुई है परमेश्वर के बेटे और बेटे का प्रकटीकरण के लिए। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पास ये समय है कि हम प्रकट हो, क्योंकि ये सारी चीजों का अंत है, लेकिन यहाँ पर एक दुल्हन है जो वचन को बोलेगी। हालेलुया। इसलिए आज रात, और ये 8वीं सभा है, और हम फिर से आरंभ की ओर जाएंगे। और 8वां दिन हमेशा पहला दिन होता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? इसलिए मैं इस पर निरंतर ले जाऊंगा। इसलिए आइए, और सारी चीज अब तैयार है। और ये यहूदियों की ऐसी प्रथा है कि 8वें दिन जो बच्चों को खतना किया जाता है। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह जब मंदिर आए, ये 8वां दिन था, और वहां पर सिमियोन था। सिमोन, कितनों ने सुना है? वो मृत्यु को तब तक नहीं देखा जब तक वो प्रभु मसीह को नहीं देखे। और जब वो एकाएक एक दिन उठ गया और उसको प्रेरणा मिली, आत्मा के द्वारा चलाया गया, और उसने और ऐसी माताओं को अपने बालकों के साथ देखा, और वो मरियम के सामने जब आया और उसने कहा कि आप तेरा दास शांतिपूर्वक जा सकता है। वो 8वां दिन था, और इसलिए मसीह भी 8वें दिन जिलाया गया। भाई ने जब पहले दिन सप्ताह के पहले दिन जी उठा, और ये 8वां दिन होता है। और पंदिकोस 50वां दिन होता है। और 7 से 7 गुना करेंगे तो 49, और 50वां दिन पेंतिकोस्त होता है। और मैं अपनी आत्मा को ढेलूंगा, और वहां पर जाके रुकी यरूशलेम के अंदर जब तक कि ऊपर से तुम सामर्थ को न पाओ। हालेलुया। और प्रेरित 1:8 में कहा कि तुमको ऊपर से सामर्थ मिलेगी जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, और तुम मेरी गवाह होंगी यहूदिया, समरिया और जगत की छोर तो। और मैं विश्वास करता हूं कि, और पास्टर ने यही हम कह सकते कि आज के दिन ये वचन पूरा हुआ, क्योंकि पास्टर सैमुअल को प्रकाशन मिला, क्योंकि ये सुसमाचार हर एक राष्ट्र, हर एक भाषा, हर एक जाति के लोगों के पास पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं, हो सकता है कि मेरे जो मित्र है जो मेरा अनुवाद कर रहे हैं, पास्टर सैमुअल बुमपका, जो मेरे मित्र है, प्रभु आपको आशीष दे यदि आप रात को है। पास्टर एजल और अनेक लोग जो अनुवाद कर रहे हैं, प्रभु आप सबका आशीषित करे आपका प्रेम के दान के लिए। मैं थोड़ा सा उत्तेजित हो चुका था, और मैंने एक अच्छी, बहुत ही सुंदर कविता को एक बार सुना था, और मेरी ये आशा होगी आज रात के लिए। और उन्होंने ये कि मैं ये एक ही काम करूं कि मैंने कलीसिया को नहीं मांगा है या कोई ऐसी संगीत। मैं केवल इतना ही मांगता हूं कि मैं इस संदेश को आवाज दे सकूं। मैं इस बात की मांग नहीं करता हूं कि लोग मेरी प्रशंसा करें या कि मेरा सब जगह मेरा नाम फैलाए, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूं कि इस संदेश को मैं पुकार सकूं। मैं इस पृथ्वी की जगह को नहीं मांगता हूं, या इस पृथ्वी की कोई भी बात। मैं केवल इतना ही मांगता हूं कि मैं इस संदेश को बोल सकूं कि उद्धारकर्ता मेरा है। मुझे इस पृथ्वी की कोई भी बातें नहीं चाहिए, लेकिन मैं परमेश्वर का हृदय चाहता हूँ। यही मेरी प्रार्थना है।
विश्वास करता हूँ कि आपका भी यही होगा कि आप उसके अंदर आकर बदल जाए महिमा से महिमा में, जब तक कि हम उसकी उसी की प्रतिमा में नहीं आते। जैसे कि हमने कहा, वो पुनरुत्थान होने के लिए हमको उसकी प्रतिमा में आना चाहिए। इसलिए मैं उस स्लाइड को मैं कि अंत समय की जो घटनाएं हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद जब वो जो इमाउस के रास्ते पर चल रहे थे, तो दो चेले उनके साथ, दो प्रेरित थे और बहुत ही दुखी थे। और वो उसके साथ जुड़ गया और कहा, क्या हुआ है, आप क्यों इतना, क्या आप अजनबी हैं यरूशलेम के अंदर? और मेरे साथ एक समस्या है, जब मैं कलीसिया में जाता हूँ और जब मैं उदास चेहरे को देखता हूँ, मुझे चिंता लगती है। और मुझे ऐसा इस प्रकार से लगता है कि जैसे पीटर ने उन्होंने कहा, जब दाऊद उस कैंप में आया, वहां पर कुछ ऐसी वातावरण था, और और उसने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों इतने निराश और डरे हुए लग रहे हैं। और बोलो गया तो उसी समय आया और बड़े बड़े उस कदमों के साथ और कहा, और सब कोई पीछे चले गए। और उसने देखा कि क्या हो रहा है, ये कौन है जो खतना रहित फिलिस्ती है और परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। क्योंकि दाऊद जानता था, बाइबल बताती है कि अब्राहम का वंश शत्रु के फाटकों पर अधिकार करेगा। आमीन, हालेलुया। मुझे ये बात बहुत पसंद है। उसने उसने ये नहीं कहा कि बड़े या छोटे होंगे या कितने आप उसने कहा कि तुम शत्रु के फाटकों पर प्रबल करोगे। और उसने कहा, ये खतनारी फिलिस्ती कौन है? क्योंकि दाऊद के पास या रेगिस्तान के पीछे एक अनुभव था, इसलिए आपके पास भी व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। और बाकी सब इतिहास है, आप सभी जानते हैं उस बात को। इसलिए इसलिए उसने कहा, आप सब निराश हुए। इसलिए बाइबल बताती है कि वो मूसा से लेकर उसने सारे भविष्यद्वक्ता में से होकर अपने बारे में उनको बताया यहोशू के रास्ते पर, कि कैसे ये इस बातों को घटित होना ही है, कि मसीह को सारी बातों को सहना होगा। और इसी परिस्थिति में हम बहुत सी बार प्रतिज्ञाओं को देखने से चूक जाते हैं। हमें तो परमेश्वर के वचन पर केंद्रित होना चाहिए। हो सकता है कि परिस्थिति आपके विश्वास को लकवाग्रस्त कर दी, और इन सब परिस्थितियों को जिसका आप सामना कर रहे हैं। इसलिए इसलिए आज रात मैं इस वचन को लेना चाहूंगा जो पतरस में है। पतरस ने जहां पर कहा, इस पर इसलिए कि मैं इस बातों के लिए कि मैं इस बात को बताने से उन उन गुणों के बारे में जो पतरस बताते हैं, कि हालांकि आप इस बातों को जानते हैं और परमेश्वर इस वर्तमान सत्य में आप स्थापित होते रहिए। मेथोडिस्ट इस वक्त का सत्य नहीं है, पेंटिकोस्टल नहीं जानते हैं इस समय के वास्तविक सत्य को, लेकिन इस घड़ी का संदेश यही वर्तमान सत्य है। इसलिए पतरस आपको कह रहा है कि मैं तुमको याद दिलाना चाहता है इसका कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। और मेरा आप वर्तमान विश्वास में स्थापित किए जा रहे हैं, और हम मनुष्य होने के नाते हम भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर समय समय पर हमको याद दिलाते रहता है। और मैं इसी बात के लिए यहाँ पर हूँ कि परमेश्वर के बहुत ही सुंदर संदेशवाहक और वैश्विक सम्मेलन में आके, और मैं प्रार्थना करता कि प्रभु, यदि प्रभु के आगमन में देरी हुई तो ये निरंतर चलता रहे और महिमा से महिमा तक आगे बढ़े। और प्रभु भाई सैमुअल को आशीष दे इस प्रेरणा के लिए, और ये महिमा से महिमा और ऊंचाई से ऊंचाई तक जाते रहे। और बहुत से प्राण इस घड़ी जब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर एक आवाज है। ये सारी अब विभिन्न आवाज होने के बावजूद भी, और राजनीतिक और मनोरंजन की आवाज, लेकिन फिर भी इनके बीच में परमेश्वर की आवाज है, और ये विजेताओं के लिए है। ये परमेश्वर का आवाज केवल आपको तो इसका एक सहभागी होना पड़ेगा। आपको सिर्फ दर्शक नहीं होना होगा, इसका सहभागी होना पड़ेगा। आपकी सहभागी आपकी मेंबरशिप के लिए नहीं, लेकिन आपका संबंध कैसा है मसीह के साथ, यही परमेश्वर को आपकी ओर देखना चाह रहा है, कि आपका संबंध जो हर एक पुरुष और स्त्री का परमेश्वर के साथ हो, कि आपके जीवन में उसके प्राथमिकता मिल सके। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हम आदर दे और खड़े हो जाए, और हमारे बाइबल से और लूका की पुस्तक, और आज की इस सम्मेलन का जो थीम है 14 इसका 17 पद में है।
verse 17 reads as thus. 17 पद इस प्रकार से, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ, But his कौन servant, अपने दास, ना कि दासों, दास, time, evening time, और भोजन का समय जब रात के भोजन का समय होता है, और उसने come, for all जिनको things are now निर्धारियों को काला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है, सारी चीजें तैयार है। tonight. क्या आप इस पर विश्वास करते हो तो अपने हाथों को ऊपर उठा सकते हैं। आज इस रात को कोई है जो अपने अभी अपनी इच्छा है, आप प्रार्थना चाहते हैं, तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। वो ऐसा महाजय के जो हम उसे छू सकते हैं। Issue of blood, और एक हम उस स्त्री के समान होने पाए जिस लहू बहने वाली स्त्री थी। amen. वो केवल वो, और जैसे वहां से गुजर रहा था उसने केवल उसे छुआ, Brought the Lord to a stop, to a और वो छूने की केवल प्रभु को वहां पर रुका दिया, और उसने कहा किसने मुझे छुआ। to form, say, but Lord, so many पतरस ने कहा कि प्रभु इतने सारे लोग हैं, सब आपको छू रहे हैं, कैसे ये सवाल आप पूछ सकते हैं। पीटर तू नहीं समझ रहा है, ये विशेष छूना था, क्योंकि मैं विशेष देख सकता हूँ कि मेरे अंदर से वो सद्गुण सामर्थ चली गई। इसलिए आज रात को प्रभु भाइयों बहनों, हम उसको इस प्रकार से छू सकते हैं कि हम परमेश्वर को रुका सकते हैं, और वो कह सकते हैं किसने मुझे छुआ। Father, we ओ स्वर्गीय पिता, people, Father. हम जरूरतमंद लोग हैं। Lord, so our needs differ. ओ Both here present, Lord, and ओ those प्रभु परमेश्वर, जो यहाँ पर है और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, may have a need, a desire, उनकी जो आवश्यकता है प्रभु, finances, हो सकता है काम या फिर आर्थिक बातें या फिर एक बीमार शरीर, लेकिन आप सभी की बातों को जानते हैं। आप परमेश्वर है, आप वही परमेश्वर है जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बाइबल बताती है। ओ इसलिए आज रात प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस मिट्टी के होठों को इस्तेमाल कीजिए, और इस होठों से आप बातें कीजिए, कानों तक पहुंचाइए, और हमें छू लीजिए प्रभु। और जब यहाँ से हम बाहर जाए, और वो लोग देखे तो कहे कि यीशु मसीह कल आज जगाने की एक सा है। इसलिए हम प्रभु आपको सारा आदर और स्तुति और महिमा देते हैं, और और ऐलान करते हैं कि आपके जैसा और कोई नहीं है लॉर्ड। आप पहले और आखिरी है लॉर्ड। आप एक बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। आप हमारे विश्वास का शुरू करने और आखिरी खत्म करने वाला है प्रभु। और आकर पवित्र आत्मा आकर अपने वचन को प्रमाणित करे। आप जानते कि आप हमारे बीच में, क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है उनके बीच में मैं हूँ। इसलिए भविष्यद्वक्ता ने बताया कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है हमसे, प्रभु आपका वचन खाली नहीं जाएगा, लेकिन जिस काम के लिए भेजा उसे पूरा करके आएगा। इसलिए आइए और इस सभा से अपनी महिमा को लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हृदय से हृदय तक, और एक सीट से दूसरी सीट तक और छू लीजिए प्रभु। और आपके अद्भुत नाम में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। और कलीसिया ने मिलकर कहा आमीन और आमीन। और अपने स्थानों को आप ग्रहण कर सकते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है यदि आप खड़े भी रह सकते हैं। आप कहते कि लोग, आप कहते कि इतना शोर नहीं मचाना चाहिए कि परमेश्वर बहरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर नर्वस भी नहीं है। स्वर्ग के अंदर 24 घंटे 7 दिन आपको केवल आनंद और परमेश्वर की महिमा हो, और यही काम करना है। और हम जानते हैं कि हम वो यूहन्ना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और यूहन्ना दुल्हन का प्रतीक है। और जब अब यूहन्ना ने देखा, एक समय था, उसने कहा कि इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरों को खोलने के योग्य कौन है। और उसने कहा कि समुद्र, पृथ्वी पर और समुद्र के नीचे समुद्र कोई भी इसके योग्य नहीं था। और वो इतना निराश था। लेकिन एक प्राचीन ने कहा यूहन्ना रो मत, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह वो जयवंत हुआ है इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरों को खोलने के लिए। और यूहन्ना ने उस शेर को देखने के लिए, सामर्थी शेर को देखने देखा, तो एक लहूलुहान को मेमने को देखा जो अनंतता से आया और यूहन्ना के दर्शन में आया। और जब मोहरों को खोला तो यूहन्ना ने अपने नाम को देखा, और यूहन्ना ने कहा कि आदर और महिमा और सामर्थ और महिमा हालेलुया उसी की हो। और एक दिन मैं रुक नहीं सकता हूं कि कब मैं वहां पहुंचू, हालेलुया, जहां मैं उनके साथ जुड़ जाऊं। बाइबल बताती है हमको रोमी 8 अध्याय में कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारे बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और यहाँ जितने बैठे सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सारी बातें, कुछ बातें नहीं। और हम गीत गाते हैं कि अच्छी बातों में परमेश्वर की स्तुति करो, और बुरी बातों में वही हमको करना है। और उस राजा के राजा की सारी स्तुति दीजिए, अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में, हालेलुया।
और उन्हीं के लिए जो उनसे प्रेम करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। उसकी इच्छा क्या है, उद्देश्य क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जो बुलाए हुए हैं। वो तो हर तारों को अपने नाम से जानता है, तो वो आपके नाम को जानता है, आपको नाम से जानता है कि इससे पहले कि तारे होते, चांद होता, कि कोई अणु होता, वो आपको जानता था, वो मुझे जानता था, और उसने मेरे नाम को लिख रखा है। परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए और आप उस किताब का हिस्सा है जिसका कभी कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए हम यहाँ पर है कि वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए, बहुत से बुलाए, लेकिन कुछ बहुत ही थोड़े हैं जो चुने हुए, और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और उसका परमेश्वर की इच्छा हम जानते हैं कि कभी भी उसे ठुकराया नहीं जा सकता। और इफिस की पुस्तक में वो कहते हैं कि उसने, जैसे कि हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, उसमें चुन लिया। आपके पास कोई चुनाव नहीं था कि आप कहाँ पर आपका जन्म होगा तो होगा। और आपको लगा होगा कि प्रभु मुझे ऐसा चेहरा था, या मेरी नीली आंखें होनी चाहिए थी। हालेलुया। आपकी कोई पसंद नहीं थी, परमेश्वर ने आपको पहले से ठहराया था। आपके पिता कौन होगा, आपकी माँ कौन होगी, और मुझे से कोई परवाह नहीं होती कि आपका पिताजी वर्ल्ड वॉर 2 में होता है और उनके आस पास से गोलियां चली, लेकिन क्योंकि उनको नहीं छू पाई, क्योंकि आपको प्रकटीकरण में आना था। इसलिए परमेश्वर आपके स्वाभाविक जन्म के लिए इतना जागरूक था, तो कितना ज्यादा परमेश्वर आपके आत्मिक जन्म के प्रति जागरूक होगा, क्योंकि वो आपको पहले से जानता था। और सही समय पर, सही ऋतु में परमेश्वर ने आपको पहले से ठहराए जाने की हुक को वहीं से रखा था, जो जगत की नींव डालने से पहले। और हम इस जीवन के समुद्र में यहाँ पर जा रहे, वहां जा रहे थे, और लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कहा अब बस हुआ। अब उसने हुक डाली और उसने घुमाना शुरू कर दिया, और आप पीछे पीछे हट रहे थे और यहाँ वहां जा रहे थे, लेकिन उसने घुमाया शुरू किया और अंदर खींच लिया। इसलिए और सारी चीजों को जाने दे और परमेश्वर को अपने स्थान को, अपने काम को करने दे। यदि आपको चाहे ये अच्छा लगे या ना लगे, अच्छे सीधा काम या कठिन काम से, लेकिन आप चुनाव आपका है। सारे आइए, सारी बातें तैयार है। ओ आमीन और आमीन। क्योंकि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, ताकि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, उसके निकट प्रेम में। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें पहले से ठहरा कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। क्या ही महान बात है। हालेलुया। और ये संदेश तो बैप्टिस्ट को अन्य भाषा में बात करने लगा देगा। ये महान बात है। आप परमेश्वर के उस दिव्य स्वभाव के सहभागी हो चुके हैं। आप इस संसार में सड़ने वाले हैं। आमीन। इसलिए आपकी बुलाहट को सुनिश्चित करें। आमीन आमीन। जिनको उसने ठहराया उन्हें पहले से बुलाया। हालेलुया। आप इस संदेश में ये सब बातों को सुन पाते हैं कि पहले से ठहराया जाना, पहले पूर्व ज्ञान और चुनाव, लेकिन आपको सही समय पर होना चाहिए। इसलिए उसको जिसने पहले से ठहराया उसे बुलाया भी, और जिसे बुलाया उसने धर्मी भी ठहराया, और जिसको धर्मी ठहराया उसे महिमा भी दी। कुछ ऐसे समूह के लोग हैं जिसको बुलाया है और उसने सुना, उन्होंने आवाज को सुना होगा, लेकिन उनको पहले से ठहराया हुआ नहीं था, ताकि इस महिमा में दुल्हन का भाग हो सके। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। यदि परमेश्वर हमारी और है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। बहुत से लोग बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे होंगे और ऐसे मुसीबत से गुजर रहे होंगे। और रोमी की पुस्तक में जाइए, और जब आप घिरे हुए हो तो आप रोमी के 8 अध्याय को उठाइए। इसलिए आप जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो शरीर के अनुसार नहीं चलते, लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए परमेश्वर आत्मा जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। हम शरीर से और देखने वाली चीजों के द्वारा नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। और यिर्मयाह कहता है कि यिर्मयाह को कहा कि मैं परमेश्वर ने कि मैं तेरे विचारों को जानता हूँ, मेरे विचार जो तेरे प्रति है कि शांति के है, वो भलाई की है। परमेश्वर इसलिए बहुत सी बार, क्या मैं अपने कोट को उतार सकता हूँ?
इसलिए get you to that expected end, amen. So God, आपको उस अंत तक पहुंचने के लिए परमेश्वर आपके प्रति सोचा है और वो चाहता है कि आपको उसी स्थान पर पहुंचा सके। late. इसलिए घड़ी आप देर हो चुकी है। Think it is. जितना कि आप सोच सकते हो उससे ज्यादा लेट हो चुका है। You think it's just जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा लेट हो चुका है। become desperate. इसलिए आप अपनी चेतनाओं को चिमटी लगाइए और देखिए कि आप कहाँ हैं। और यहाँ वहाँ लड़खड़ाते मत रहिए और खेलते मत रहिए, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपको तो विजेता बनना है। चुनौतियां तो आएगी, परमेश्वर लेकिन जितना आप सह नहीं सकते उससे ज्यादा आपको कभी कभी नहीं देगा, लेकिन उस आपके लिए मार्ग निकालेगा वहां से। इसके लिए 7 कलीसिया कालों में से हमने देखा है, एक सेवक ने उससे बात किया कि केवल विजेताओं के लिए मैं परमेश्वर के भवन में एक पिलर बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक नया वस्त्र दूंगा विजेताओं के लिए, और विजेताओं के लिए, विजेताओं के लिए, विजेताओं के लिए, जो जय पाएगा उसी के लिए। ये सिर्फ जय पाने वालों के लिए है। January this year, और जनवरी इस साल the bulletin of the atomic scientists. और एटॉमिक साइंटिस्ट की एक जो बुलेटिन जो 75 साल पहले ब्रैनम ने इन बातों के बारे में देखा। आइंस्टाइन इसका एक भाग थे What's happening? और उन्होंने कहा कि जो घटनाएं जो विश्व में हो रही है, ये सब मनुष्य जाति को धोखा देने वाली है। और जब इनके बारे में भाई ब्रैनम ने बहुत सी बार कहा था कि मध्यरात्रि में केवल 3 मिनट बचे हुए हैं, Cold War and different things. And और ये जो बातें घटित हो रही है, कोल्ड वॉर हो रहा था, लेकिन अब जनवरी में इस वर्ष उन्होंने उस घड़ी की नोक को, सुई को हिलाया और अब केवल 90 सेकंड बचे हुए। मुझे पता नहीं आपने देखा है या नहीं, 90 सेकंड। ब्रदर ब्रैनम ने 3 मिनट कहा था, लेकिन उसका अब आधा समय बचा हुआ है। ये आधी रात की बुलाहट है, आधी रात की चिल्लाहट है कि दुल्हन को अपने आप को तैयार करना है। but extra oil, like Pastor आपको केवल तेल ही नहीं लेना, लेकिन अधिक तेल लेना, जैसे भाई नोलन ने कहा था। इतना सुनिश्चित कर ले कि आपकी जो बुलाहट और चुनाव को आप सुनिश्चित कर ले come like a thief. कि वो किस दिन आने वाला है, लेकिन वो चोर के नहीं मध्य रात्रि में आएगा। इसलिए आपको हर समय तैयार होना है। Cannot be taken by accident. Amen. So I believe that मैं विश्वास करता हूँ everything that we need, जो आवश्यकता है हमारे लिए वो सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम तैयारी कर सकते हैं। कलीसिया को जिस बात की आवश्यकता है वो सारी चीजें हैं। बाइबल बताती है कि आपको सामर्थ मिलेगी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, this is both in और आप गवाह होंगे यरूशलेम के अंदर, यहूदी और समरिया में, और जगत के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। और आज रात में कह सकता हूँ कि ये इस दिन ये वचन पूरा हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ। Pakistan, in Africa, पाकिस्तान के अंदर, अफ्रीका, ब्राजील के अंदर, और जहाँ कहीं भी साउथ अफ्रीका, अमेरिका में मेरी आवाज जा रही है, वहां पर पहुंच रही है इस ध्वनि के द्वारा। like Jesus when he was walking, जैसे यीशु मसीह उस प्रकार के, जब यीशु मसीह चिन्हों के साथ चल रहे थे Moses and all the और उसने मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ताओं को लेकर अपने विषय में उनको बताया। the synagogue, Bible says, as एक बार प्रभु उस आराधनालय में गए थे और उनके लिए एक पुस्तक दी गई, और उसने उसी जगह पे देखा, the Lord is upon me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया है कि ये सुसमाचार को मैं प्रचार करूं और जो बंधुआई में उनको मुक्त कर लूं। और उसने पुस्तक को बंद कर दिया, और आज के दिन ये वचन पूरा हुआ। हालेलुया। Found the scroll और जब हम इस scripture in Isaiah. उसने जो उसके हाथ में जब वो पुस्तक मिली, तो उसने एशिया की पुस्तक को खोला, उसने 9:6 को नहीं खोला, क्योंकि वो अब इतिहास था, और क्योंकि अब बालक नहीं था, क्योंकि अब वो जानता था वर्तमान सत्य कि आप क्या हो रहा है, कि वो अपने आप को एशिया की पुस्तक में देख सकता था। इसलिए वो कहता है कि अपनी पुस्तक में देख, मैं आ चुका हूँ, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है कि मैं तेरे कामों को पूरा करूँ। आपके विषय में कहा, मेरे विषय में क्या, Yourself in the आप अपने आप को इस पुस्तक में पाएंगे। हालेलुया। no condemnation. इसलिए उन पर दंड की आज्ञा नहीं। Scripture there. आप अपने आप को देखिए, वो वचन आपके लिए पूरा सृष्टि करा रही है। आप मनुष्य परमेश्वर के पुत्र और बेटे और बेटी के प्रकट होने के लिए आप अपने आप को वहां पर देखिए। Your body will obey your confession. हर आपकी देह आपकी अंगीकार को सुन लेगी, और अपने आप वचन में अपने आप को देखिए। इसलिए दाऊद और यहोशू देखिए, Came with the evil report. और जब ये 10 लोग आए, भेड़िए आए और गलत बातों को लेकर, उन्होंने कहा हम तो इसके लेने के लिए जयवंत से भी बढ़कर है। उन्होंने परमेश्वर के भविष्यवक्ता की बात पर विश्वास किया था। भविष्यवक्ता ने कहा था, आप दाहिना बाएं नहीं जाना, लेकिन आप खड़े रहना और हियाव रखना, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसा। परमेश्वर ने इस बात को कहा, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। And therefore they could say, आमीन। और इसलिए वो कैसे कहने पाए थे, I like Caleb. मुझे काले बहुत पसंद है, 80 साल। और उसने कहा, मुझे वो पहाड़ को दे दीजिए, मैं अभी भी उतना ही जवान हूँ युद्ध करने के लिए। हालेलुया। Look at the size
उन्होंने उस बड़े बड़े राक्षसों की साइज को नहीं देखा। the contrast. और अब इस विपरीत बातों को देखेंगे। Tribes of Israel. ये सारे इसराइल के गोत्र के अध्यक्ष थे। Circumcision. वे इसराइल में जन्म हुए थे, उनका 8वें दिन खतना हुआ था। Heads of the वे इसराइल के गोत्र के अध्यक्ष थे, लेकिन 10 लोग आए और बुरा समाचार लाए। milk and honey, but हम जानते हैं वहां पर युद्ध और मधुरी की धारा बहती है, लेकिन वहां पर राक्षस लोग है, बड़े बड़े लोग हैं, दानव है। और वे they saw. और वे जिस बातों को देखे उससे वे डर गए थे। लेकिन वहां पर To Jericho, and then they और जब वे एरियो के पास आते, hallelujah. राहाब को वहां पर देखते हैं। उसने कहा, राहाब ने कहा, मैं जानती हूँ इस तुम्हारे परमेश्वर के विषय में, मैं जानती हूँ वो वास्तव में सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि लोग जानते थे कि आपके लोगों ने इस राष्ट्र में उस राष्ट्र में क्या किया। इसलिए जैसे इसराइल यरीहो के पास आ रहा था, अब वे डर रहे थे, कांप रहे थे। हालेलुया। Can recognize the word of God. एक अविश्वासी परमेश्वर के वचन को पहचान सकता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के लोग थे, वो कह रहे नहीं 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 नहीं, हम तो चींटी के समान है उनके सामने। लेकिन इन्होंने कहा, याकूब और कालेब ने कहा, यहोशू और कालेब ने कहा, हम वो महान लोग हैं। और जब भाई ब्रैनम कहते हैं कि शैतान जब आके आपको डराएगा तो आप उसको डराइए, तब वो छोटा हो जाएगा और आप खड़े होकर अपने स्थान को लीजिए। जब वो ऐसे आपको डराएगा तो आप भी उसको कहिए पीछे चले जा, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और सारी महान बातें मेरे अंदर में, और महान जो है वो है जो मेरे अंदर है, जो इस संसार में उससे, और मैं जैवन से भी बढ़कर हूँ। Lord, amen. हालेलुया। The devil bully you. और कोई शैतान आपको डराने न पाए। Problem says in the statue of इसलिए भाई ब्रैनम इस बात में कहते हैं कि सिद्ध मनुष्य के दिल डोल में organization. हम कोई एक संस्था का निर्माण नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर इस सुबह संस्था का निर्माण करने नहीं हूँ। मसीह ने मुझे इस बात के लिए नहीं भेजा है। मसीह ने तो इसलिए भेजा है कि मैं व्यक्ति को यीशु मसीह के दिल डोल में बढ़ा सकूं। We always have this thing, who's perfect? All human beings. No, no. और It हम says, be therefore perfect. यीशु मसीह ने कहा इसलिए तुम सिद्ध बनो, जैसे कि स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Without perfection, there's no resurrection. क्योंकि सिद्धता के बगैर कोई पुनरुत्थान नहीं होगा, Powerhouse. ताकि वो सामर्थ का ऐसा घर बन सके और परमेश्वर की आत्मा का वचन के जरिए एक रहने का निवास स्थान बन सके। हमें पावर हाउस बनना है। आपको सामर्थ मिलेगी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। Lies the secret where इसलिए उनके जीवन में आप अपने आप को देखिए the Spirit says, Lord God, और आप आत्मा से भरते जाइए। when last have I felt the victorious और पिछली बार जब आपको ऐसा लगा था कि मैं विजयी मैंने महसूस किया, आप कहिए परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझ पर उंडेल दे। और भाइयों बहनों, आज उसकी आत्मा को महसूस कीजिए इस रात को, जैसे सिमसोन वहां खड़ा होगा कि प्रभु एक बार फिर और आमीन। अब परमेश्वर ने is more willing to fly और परमेश्वर अपनी सामर्थ को उंडेलने के लिए तैयार है, अपनी आत्मा को उंडेलने तैयार है जितना कि आप तैयार है। वो हम पर उंडेलना चाहता है। वो चाहता है कि आप पावर हाउस बने, सामर्थ का घर बने। in trespasses. वो You have been quickened. आपको जो पाप में अपने अपराधों में मरे हुए थे, आपको जिलाया। I like this, the song one brother saying, amen. और एक भाई ने गीत गा रहे थे, It tells us, amen. रोमी 8 इस बात को बताता है कि जीवन के नवीनीकरण के बारे में मैं अब वो नहीं हूं जो मैं पहला था, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा पुस्तक में नाम लिखा हुआ है और मुझे परमेश्वर की धार्मिकता मिली हुई है। Bound God forbid. और ऐसा ना हो कि अनुग्रह इसलिए हम अधिक पाप करते रहे, ऐसा कभी ना हो। So you gotta yield yourself to the Lord. इसलिए अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दे और कहीं परमेश्वर आकर मेरे अपने आप को ले ले और मुझे भर दे Me, according to और मुझसे बातें करे तेरे वचन के अनुसार। प्रभु हालेलुया। available, अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करे that God knows. और ऐसे जीवन जिए कि परमेश्वर आपको जानता है कि आपको कहां पर खोजे। Hallelujah. हालेलुया। Looking for such, amen. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, So आमीन, might be the powerhouse by ताकि वह सामर्थ का घर बन सके उसके वचन के द्वारा। that place. और वो हर एक व्यक्तिगत को परमेश्वर के बेटे बेटी को उसमें बनाना चाहता है। To एक daughters. एक व्यक्तिगत को परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाना चाहता है, वहां पर निर्माण करना चाहता है। यही आइडिया है। आपके विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर संयम और संयम पर ज्ञान, Sees himself और परमेश्वर के दिल डोल तक बढ़ते जाए। and unite with the. और वो जब इस बात को देखेगा तब अपने दुल्हन के साथ एकत्व में आ जाएगा। And in fact, the end-time message is to come. इसलिए अंतिम समय का संदेश आपको दुल्हन को तैयार करने आया है रैप्चर के लिए। यही अंतिम समय का संदेश है, यही संदेश का उद्देश्य है। God sent परमेश्वर ने Elijah to tell एलिया को भेजा ताकि हमारे हृदय को मोड़ सके और हमें तैयार कर सके, क्योंकि वो जानता है कि इस युग में सिद्धता की जरूरत है। कोई और युगों में नहीं था। us they were this and वे सुधारक थे, वे ये थे वो थे, लेकिन इन दिनों में हम फिर से पूर्णता के रूप में हैं। हम परमेश्वर के आगमन के समय में पाए जाते हैं। इसलिए सिद्धता पुनरुत्थान का एक भाग है।
इसलिए back home in our country, और हमारे देश में पीछे बार हमारे पास एक बड़ी समस्या है, works for भाई नोलन जानते हैं। he works for our power generator. और वो पावर जनरेटर के लिए काम करते, और हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है। Load shedding in the spirit. परमेश्वर कभी लोड शेडिंग आत्मा में नहीं चाहता है। There's something about power, आप जानते हैं पावर के connection. और People कनेक्शन के बारे में क्या आप जानते हैं? लोग कनेक्शन चाहते हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं। travel, then you बहुत सी बार जब मैं यात्रा करता buy हूँ a SIM card and you don't get और सिम कार्ड जानते हैं तो सिग्नल नहीं होते, तो आप लोग ऐसे यहाँ वहाँ चलते कि सिग्नल क्योंकि कनेक्टेड होना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं। there's no with God there's no cable TV, there's no लेकिन परमेश्वर के प्रति, 24/7. परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं कि कहीं नेटवर्क नहीं है, 24 घंटे सातों दिन नेटवर्क है, हमेशा स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेगा, बढ़िया सिग्नल होगा हमेशा। Showed us what his benefits परमेश्वर अपनी लाभों से हमें आशीषित करना चाहता है। him. परमेश्वर की आत्मा जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, यदि तुम में वास करता है। He mustn't मैं just be a visitor, आप केवल एक दर्शक न हो, an acquaintance. He must be a केवल मैं परिचित हूँ, आपको तो हमेशा का निवासी होना चाहिए और वो हमेशा आपके अंदर रहना चाहिए, सिर्फ बुधवार के दिन ही नहीं, लेकिन हमेशा वो आपके अंदर निवास करे। लेकिन उसने जिसको मसीह की, वही आत्मा ने जिसने मसीह को मरियों में से जिलाया, यदि तुम में वास करता है तो वो तुम्हारी नश्वर देह को भी फिर से उसके आत्मा के जरिए जिलाएगा। कितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की आत्मा हम में वास करना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है। आमीन। I was looking at इसलिए this problem we मैं इस बातों को देख रहा था जो हमारे देश में जो समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई there's की जो समस्या है, UPS, an और आप जानते हैं कि यूपीएस ले सकते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। inspiration, amen. और प्रभु ने मुझे एक प्रेरणा दी, ये अब इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या है, विद्युत ग्रिड क्या होती है। ये एक इलेक्ट्रिसिटी को देने के लिए होता है, जो कि पावर है, सामर्थ होती है, उत्पादक से लेके जो परमेश्वर होता है, और उपभोक्ता के लिए जो उपभोक्ता विश्वासी होते हैं। और ये एक जनरेटिंग स्टेशन होता है जो कि पवित्र आत्मा है, जो विद्युत को पावर को जनरेट करता है। Magnet, hallelujah. और ये पवित्र आत्मा जो इस प्रकार से यहाँ से वहां दौड़ता है, यहाँ से वहां चल रहा है, वो हर तरफ चल रहा है। High voltage transmission. और हाई वोल्टेज संचारण लाइनों के जरिए जो भविष्यवक्ता होते हैं, उनके जरिए पवित्र आत्मा बढ़ता है, जिसके पास सामर्थ होती है। एक ऐसे परमेश्वर के दिमाग से, परमेश्वर के मन से उनको सामर्थ मिल रही है, और ऐसे डिमांड सेंटर में जाए जो कि लोकल चर्चेस होते हैं, Line of fivefold ministry. और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है, संचारण जो लाइनें होती है, वो 5 प्रकार की सेवकाइयां है, ताकि विश्वासियों तक पहुंच सके। They vary in size. इसलिए इलेक्ट्रिकल जो ग्रिड होते हैं, जो पावर को तैयार करते हैं, वो अलग अलग साइज में हो सकते हैं, कोई सिंगल बिल्डिंग जैसे हो सकते हैं, Like a Pastor Samuel. Hell, जैसे पास्टर सैमुअल के जैसे कोई प्रेरित हो सकते हैं, और वो पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय ग्रिड हो जाता है। और फिर उसके बाद ट्रांसनेशनल, जो कि यानी कि अंतरराष्ट्रीय बनता है, और फिर महाद्वीपों के पार चला जाता है। और आप पास्टर सैम को देखिए, और हम महाद्वीपों को पार कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर, पाकिस्तान में, इंडिया में, पेरू के अंदर, अफ्रीका के अंदर, जहां कहीं भी आप हैं, ये दुल्हन इकट्ठा हो रही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, इसलिए परमेश्वर उनको आशीष दे, और उनकी टीम को भी कि जो बड़ी मेहनत ले रहे इस दृश्य के पीछे, इस बात को संभव करने के लिए, ताकि दुल्हन के लिए आशीष का कारण बन सके। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर अपनी प्रणाली को कभी बदलता नहीं है। जिस तरीके से वो बातों को लेकर आता है, वो हमेशा वही तरीके से करता है। हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं करता। परमेश्वर अनंत है, उसका पहला ही निर्णय हमेशा हमेशा के लिए सही होता है। वो स्मार्ट नहीं बन सकता। intelligence now. हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस More smart, but God और स्मार्ट बनते हैं, लेकिन परमेश्वर वो स्मार्ट नहीं बनता। वो इसका अर्थ वो परमेश्वर नहीं हो सकता। फिर He's the source of all wisdom. वो सारी ज्ञान का स्रोत है, वो सारा ज्ञान है, वो सारी सामर्थ है, And he's omnipotent. वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थ्य है। इसलिए वो जब वो बातें कहता है, तो आप परमेश्वर पर अपने प्राण को रखें, क्योंकि वो बिल्कुल उसे पूरा करेगा। Elijah the prophet, कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे पास एक एलिया नबी को भेजूंगा, तो उसे थामे रहिए और वचन में अपने आप को देखिए। you know, because we in this day, we become क्योंकि हम इन दिनों के अंदर, हम बहुत से बार हम वचन क्या है कि जो बातों का अभिव्यक्ति है, इसलिए जगत की पहले उसने उसने आपके विषय में सोचा, और वो विचार जो होते अभिव्यक्त किए गए। बाइबल बताती है कि आप जो प्राचीन काल के लोग थे, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे गए, और परमेश्वर का वचन जो है प्रेरणा से लिखा हुआ है, और हमारे लिए दिया गया था कि हम मजबूत बन सके।
एक बार ऐसा नहीं हुआ कि एशिया ने सोचा कि मैं कुछ लिखता हूँ, मूसा ने साहब मैं कहानी सोचता, नहीं नहीं, पवित्र आत्मा की तरह उभारे गए। Imagine that day when God क्या said आप to कल्पना कर सकते हैं कि Isaiah, परमेश्वर ने write your एशिया को pen. भेजा, अपनी कलम उठा। हाँ पर हाँ प्रभु, Says, right. वो अपनी कलम को उठाता है, लिख, A और लिखने virgin लगता है। shall एक कुंवारी गर्भवती होगी। excuse me, Lord. एक्सक्यूज A मी प्रभु, virgin shall conceive. आवाज आई, एक I कुंवारी don't think गर्भवती he होगी। questioned the Lord. You see, उस मुझे नहीं लगता कि उसने सवाल किया। business to make it come to ये pass. क्योंकि एशिया का काम नहीं था कि उसे घटित कर सके, ये तो उसका काम था कि लिखे। ये तो सिर्फ एक God will चैनल था। perform it. Amen. परमेश्वर अपने काम को Hallelujah. पूरा So he करेगा। had to write it आमीन। down, and उसे in केवल due लिखना season, था, और God will एक ऋतु में, अपने ऋतु में परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करने वाला था, और वो वचन एक प्रगटीकरण वचन होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने हमें अपने को पहले जगत की ये डालने से पहले देखा कि ये मेरी दुल्हन है, और वो हम पर ध्यान लगाए हुए है क्योंकि हम प्रकटीकरण के समय में है। जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटता, लेकिन जिस काम के लिए भेजा उसे पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। किस घड़ी में हम रहते हैं, बहुत से लोगों ने इस दिन को देखना चाहा, जो इसको हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसे देखने की कोशिश की, और हम बहुत से बार अलौकिक बातों को देखने के लिए हम बहुत से बार साधारण बन जाते हैं परमेश्वर के वचन से लेके, और साधारण हमारे लिए बन जाता है, और इसराइल की जैसे नहीं। लेकिन हम ऐसा करें, हर एक बातों की हम सराहना करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है। इसलिए बाइबल के अंदर हम अंत के दिनों में पाए जाते हैं, और पिरामिड के उस, और अब कैंसर का जो युग था, और जो परमेश्वर का लियो जो लायन है, सिंह है, उसके आने के बाद, और परमेश्वर के बेटों की प्रकटीकरण के बाइबल के अंदर जो समय लिखा है, उस समय में हम पाए जाते हैं। बिल्कुल हम अंत के समय में है। हम देखते हैं इस बातों को, परमेश्वर, क्या आपको लगता है परमेश्वर एक दूसरे युग का निर्माण करेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने लोगों को देखता हूं कि वहां पर भूमि पर कुछ लोग होंगे कि संदेश वाह के तले वो आखिरी युग के लिए आखिरी आवाज होगी। वहां पर मैं अपने नाम को देखता, अगर मैं नहीं तो और कौन? इसलिए प्रकाशन का अर्थ होता है कि अपोकलिप्स, यानी कि अनावरण करना, जो कि पहले से छिपा हुआ था, अब अनावरण उसका हुआ है। ये जो पहले हो सकता है कि सत्य जो पहले से ढका हुआ था, या कोई निर्देश जो पहले पता नहीं थे, लेकिन अब घटनाओं के चलते वो व्यक्तियों के जरिए आपकी आपके दृश्य पर उसे अनावरण किया, प्रकटीकरण किया गया है, दृश्य पर लाया गया है। इसलिए प्रकाशन के विषय में एक बात है, जैसे भविष्यवक्ता ने बताया, एक प्रतिमा है, ये कपड़े से ढकी हुई है, वो ढकी हुई है, जैसे कि जो उसके पीछे है, जब आप उसे हटाते हैं तो वो अनावरण होता है, और जो अनावरण है वो प्रकाशन है। प्रकाशन उसको नहीं बदलता जो अंदर था, प्रकाश वो जो अंदर था वो तो वही है, लेकिन आपका से खुल चुका है, आप दृश्य पर आ चुका है। इसलिए आपकी जो महिमा में देह है वो यहीं पर टैबरनेकल में है, आपकी महिमा में देह, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो कि आपकी आपकी महिमा में दशा है। आप मसीह के अंदर महिमा में हुए हैं, क्योंकि जिनको धर्मी ठहरा उनकी महिमा भी दी। आपकी महिमा में दे इसी वक्त आपके पास खड़ी है मसीह यीशु में, ताकि आपको ताकत दे सके, ताकि आपको ताकत दे सके, जैसे कि चार्ज करते हैं जो बैटरी के अंदर चला जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ पर है आपके देह में चार्ज देने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, आपको ताकत देने के लिए। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके बॉडी को चार्ज करने के लिए है, ताकि आपको नई ताकत दे। जब आपकी ताकत कम हो जाती है तो आप चट्टान के पास जाइए, और तब वो आपको फिर से धकेलता है और आपको बीमारी से चंगा करता है और ठीक करता है, क्योंकि इसलिए पवित्र आत्मा है आपको छूने के लिए और आपको चंगा करने के लिए। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, और वो उसका नाम नबी बताते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति था और उसका नाम जॉन रायन था। और जब ये प्रचार करता आता और दौड़ कर आता और मेरा हाथ मुझसे हाथ मिला था और मेरे हाथ को हिला था, और फिर से जाता और फिर प्रचार करता, फिर जाता और फिर मेरे हाथ को मिला था। अब भाई ब्रैनम ने उससे पूछा, भाई रायन आप क्या कर रही है? उसने कहा, मैं तो केवल अपनी बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ। वो वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं और मैं प्रीच कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि आप वहां बैठे तो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि आपने इस सभा के लिए भी प्रार्थना की है। बहुत से लोग जब सेवक कमजोर दिखाई देते तो आप प्रार्थना कीजिए तो वो चार्ज हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। आपको बैटरी को एक बार तो चार्ज करना पड़ता ही है। इसलिए आपका बगल वाला सो रहा है तो उसको चार्ज कीजिए, आपका बगल वाला थका हुआ है तो उसको छू लीजिए और चार्ज दीजिए। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए हमें हमें ऐसी बैटरी की आवश्यकता है जिसको चार्ज करना है। एक बार मार्क सुसमाचार में बहुत अच्छी बात है एक दूसरे को चार्ज करना। बाइबल में एक बार एक ऐसा व्यक्ति था, वो अपने आप को सहायता नहीं कर सकता था, कर सकता, लेकिन उसके पास कुछ अच्छे मित्र थे और उन्होंने सुना कि यीशु मसीह उस घर में आया, तो उन्होंने उस कलीसिया में लेके गया। ऐसे ऐसे मित्र होना अच्छे हैं जो कि आपको चर्च में ले जाते हैं। आमीन। और उन्हें उस जगह पे लाया जो पूरा भर चुका था, और जहां पर यीशु है वहां पर भरे हुए रहते हैं, वहां पर उनको अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी। और विश्वास किसी बात के लिए आपको रोकता नहीं है। विश्वास यदि है, मैंने तो अपना दिमाग बना लिया, मैं अब नहीं रुकूंगा, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए क्यों ना आए, कितनी भी अड़चने क्यों ना आए। किसी ने ऊपर देखा कि नीचे तो पूरा भरा हुआ है। आप वो छत है, छत से हम रास्ता निकाल सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कि कलीसिया के अंदर जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और वहां पर अचानक ऊपर से आवाज है और धूल नीचे गिर रही थी और टाइल्स ऊपर की गिर रहे थे, खपरा गिर रहा था, और अविश्वासी दौड़ने लगे, क्या ये भूडोल तो नहीं है। लेकिन वहां पर देखे तो एक ऊपर से एक मनुष्य को नीचे उतारा जा रहा है और उसके मित्र उस डोरी से पकड़े हुए हैं उसको, और उस डोरी से पकड़े हुए हैं रस्सी से, और उसको नीचे उतरलाया। क्या ही विश्वास उनका था। और उसने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मुझे लगा वो तो नहीं के लिए आए, और कुछ ऐसे वहां पर दोष लगाने वाले थे। और जब उन्हें यीशु मसीह ने उनके विचारों को पकड़ लिया, ये कौन है, सिर्फ परमेश्वर ही भी तो पापों को क्षमा कर सकता है, ये कौन है। और हाँ बिल्कुल, वे नहीं जानते थे, बिल्कुल परमेश्वर ही पापों को क्षमा करता। पुराने नियम का यहोवा ही तो वहां खड़ा था, परमेश्वर ही यीशु मसीह में था। हालेलुया। और उसने कहा, आप कौन है। साउल को जब मिला उसने कहा, मैं वही परमेश्वर हूं जिसको तू सताता है। उसने कहा, अपनी खटिया उठा और चल। बहुत से बार आपको कुछ करना होता है। आप उस बीमार व्यक्ति को कहा, अपनी खटिया उठा। उसने अपनी खटिया को ऊपर उठाया और नीचे चलने लगा। हालेलुया। वो कलीसिया में आया था, वो अपनी कमर उस खटिया पे रखी हुई थी, लेकिन जब उठा उसने अपनी खटिया को ऊपर उठाया, अपनी कंधे पर उठाया और चल गया वहां से। हालेलुया। आपको सामर्थ मिलेगी ऊपर से। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तो आप ऊपर से सामर्थ पाओगे। आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। और एक कैदी, और एक ऐसी आपको भाई बहनम इस बात को बताते हैं कि कुछ लोग जंगल में जमैका के अंदर 7 मोहरों की पुस्तक को सुन रहे थे टेप पर, और आग का खंबा उस पर उतर आए। ये वही आग का खंबा वास्तव में तो जब उन्होंने बताया था 90 सेकंड बचे हुए मध्य रात्रि के लिए, तो ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर जो आग का खंबा उतर आया था, और अब तो बहुत ही देर हो चुकी है। भाई ब्रैनम इस बात को बताते, और एक उस ऐसे वो जो सोता है, नीचे से वो उमड़ रहा है, कि उसे किसी ने पूछा कि क्यों तू उमड़ रहा है। वो कहा, मैं नहीं जानता। क्योंकि पंछी आकर आपसे पीते हैं पानी? नहीं। क्योंकि हिरन आता है और यहाँ से पानी पीता है? नहीं। क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ आता हूँ। भाई प्रणम ने कहा, इसलिए तो उमड़ रहा है? इससे नहीं, अंदर से कुछ तो है जो मुझे ढकेल रहा है, मेरे पीछे से मुझे ढकेल रहा है, और मैं नहीं जानता हूँ, कुछ तो है जो मुझे ढकेल रहा है। मैं उसकी छाव को महसूस करता हूँ। जब मैं परमेश्वर को सुन रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। ये तो गहराई है, गहराई को पुकारने के लिए, गहराई पुकारती है तो गहराई प्रत्युत्तर देने के लिए है। इसलिए भाई ब्रैनम बताते इस संदेश के अंदर कि मसीहत की नकल इस संदेश में बताते कि आपका विश्वास होता है, जो आपका विश्वास जो है प्रक्षिप्त करना है, कि वो एक महान सामर्थ को, जो जनरेटर है, जो परमेश्वर की शकीना महिमा को नीचे लाता है। इसके लिए आपको एक काम करना होता है। आपको यहाँ पर अविश्वास के साथ बैठना है। ये लौदीकिया की स्थिति है, और मैं ठीक हूं, मैं संदेश में हूं, मैं धूम्रपान नहीं करता, शराब नहीं पीता। परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सरगर्म रहो, हमेशा आग तुम्हारे अंदर हो। परमेश्वर यही चाहता है कि कलीसिया हमेशा ज्वलंत रहे। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास है, और तुम्हारा विश्वास का प्रक्षेपित करना, कि आप उस महान जनरेटर को लेकर आए जो कि शकीना महिमा को लेकर आता है।
और ऐसे लोग चाहिए जो कि शकीना महिमा के अंदर प्रवेश कर सके और परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतर आए और बीमार लोग चंगे हो जाए और ऐसी बातें घटित हो हमारे बीच में। और टोरंटो के अंदर आप देख सकते हैं कि ओटावा के अंदर परमेश्वर की आशीष उतर रही है, जैसे कि पेंतिकोस्त के दिनों में था जब वो नीचे उतर आए थे और वे आत्मा से भरे हुए थे। और उसने कहा कि ये तो 9 बजे है और ये तो शराब से पिए नहीं, ये शराब नहीं पिए हुए, ये तो वो जो लिखा हुआ था भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, योएल नबी के द्वारा कि मैं अपनी आत्मा को दे लूंगा और सारे मानव जाति पर और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आप अपने आप को वहां पर देखिए और आपके जवान दर्शन देखेंगे और मैं अपनी आत्मा को तुम पर उंडेलूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर की शकीना महिमा को जो नीचे लाते हैं और हर एक व्यक्ति को अभिषेक करता है और विश्वास के लिए, और विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। भाई ब्रैनम इस इंजन के बारे में बताते हैं, लोकोमोटिव इंजन, ये स्टीम का जो भाप से इंजन चलता है, ये बहुत से मुझे इस लोगों को दिखाता है। इस इंजन को देखने के बाद भाई ब्रैनम बताते हैं कि एक ऐसा कलीसिया है जिसके पास ढांचा है लेकिन उसके पास भाप नहीं है, क्योंकि उसके पास शायद कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। आपको तो हमेशा जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपके पास जनरेटर है लेकिन वो इंजन चल नहीं रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन नहीं है। इसलिए कलीसिया के पास ढांचा जरूर है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो आप तो यहाँ वहां चले जाएंगे, आप कहीं डूब जाएंगे। और आपको तो उस जनरेटर के पास जुड़ना चाहिए ताकि परमेश्वर की वो करंट जो है, बिजली जो है आपके पास वायर से होकर आपके पास चली आए और वो आग आपके पास लेकर आए। इसलिए आप कनेक्टेड रहिए। इसलिए पतरस ने कहा, क्या तुम इन बातों को नहीं जानते? मैं वर्तमान सत्य में इस बातों को स्थापित करना चाहता हूं कि आपको याद दिलाना चाहता हूं उन दिनों के विषय में जब मैं पहली बार इस संदेश में आया। हम इतने आग से भरे हुए थे और इतने उत्तेजित थे। हम हर एक को परमेश्वर की अच्छी भलाई के बारे में बताते कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम के बारे में, तेरी अनुग्रह मुझे कभी मुझसे चूकती नहीं है और मेरे सारे दिन तेरे हाथ में है। हम परमेश्वर की भलाई के बारे में लोगों को बताते थे। आपको उस स्थिति में रहना चाहिए कि आप कभी भी खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसी बातें की है। आइए और आकर देखिए परमेश्वर ने मेरे लिए क्या काम किए। इसलिए जब उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है तो वे ऐसे कामों को करेंगे जो आत्मा उनको कराएगी। और इसलिए आप उसको लीजिए और वचन के साथ जो जनरेटर है, बिजली को तैयार करता है, उसके साथ जुड़ जाइए। और इसलिए वह शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। इसलिए 2 पंख आपको दिए हैं, आप उड़ते रहिए। कैसे कहिए? जैसे कि उकाब आसमान में उड़ता है वैसे मैं उड़ने वाला आपको दिए हुए हैं। उसको आप पंखों को इस्तेमाल कीजिए। आप चिकन नहीं है, आप मुर्गी नहीं है। और पुराना और नए नियम को लीजिए, वचन और आत्मा को लीजिए और ऊंचाई पर चलिए, क्योंकि वहां पर अभी आपको होना चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए इस बातों को लेंगे, आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। और वहां पर देखिए कोई रोधक होता है कि जहां पर वो उस लाइन को रुका रहा है, लेकिन जब लाइन वो करंट आपके पास आता है कंडक्टर के जरिए, इंसुलेटर, आप इसको बारे में सुनेंगे जिसको रोधक कहते हैं। भाई ब्रैनम उस फैक्ट्री के बारे में जा रहे थे और वहां पर ऐसे बड़े बड़े चुंबक थे और वो चुंबक जब उस फैक्ट्री में इस्तेमाल हो जाते थे और स्टील और लोहा जो वो उठा लेता था उसको, वो चुंबक चिपक जाते थे। और परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन कुछ बार और कागज वहां पे है, लेकिन कागज तो उसको नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक उसको चिपक नहीं सकता, लकड़ी चिपक नहीं सकता, लेकिन जो धातु है वो उससे चिपक जाता था। और लेकिन जब वो आता है वो हिलना शुरू करते हैं। हालेलुया। वो हिलना शुरू करते हैं और वो कह सकते हैं कि मैं सुन रहा हूँ उस आवाज को, मैं महसूस कर रहा हूँ उस आवाज को। लेकिन कुछ लोग जिसको बोल्ट लगाया हुआ है वहां पर, कुछ लोग है तो आपको ऐसे स्प्रे करने के लिए ताकि उसको ढीला कर दे। और इस संसार की बातों से इतने ज्यादा इसके साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के तेल चाहिए ताकि आपको ढीला कर दे। परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए जैसे कि अगर आपके देश में है कि नहीं, लेकिन मेरे देश में होता है। और हम जब उस तार पर कुछ कपड़ों को डालते हैं तो सुबह सुबह वहां पर ओस गिरती है। लेकिन जब सूर्य आता है
तो वहां पर बहुत ही जुबिली होती है, और ये सारे ड्रॉप जो है आनंद, वो जो बूंद है आनंद लेते करते कि मैं जहां से आया हूँ अब फिर से वहां जा रहा हूँ, वैसे ही मैं होना चाहता हूँ। And amen. परमेश्वर की स्तुति हो। So no matter how nice the copper wire is, if it hasn't got the इसलिए life of the ever, इससे अच्छा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तांबा की तार जो है कितनी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर अगर जीवन नहीं है तो मरी हुई है। इसलिए वो तो, उसको जो जनरेटर है उससे तो उसको ताकत मिलती है। इसलिए वो पहले से ठहराई हुई, अ, पहले से ठहराया हुआ वो बर्तन है। यदि आप विश्वास करते हैं कि तो पहले से ठहराई हुई, तो वो आपके अंदर काम करेगा, वो सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगी, केवल आप कनेक्टेड हो रही है। bogged down by this Laodicean आह, tradition, amen. और लौदीकिया की स्थिति से आप गुनगुना मत बने रहिए और इससे दबे मत रहिए, लेकिन आप कहिए परमेश्वर के प्रति मैं आपके लिए एक आग बनना That's the चाहता हूँ। reason the word will work. इसलिए इसलिए आपको हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। No, sir. That's a dead socket. Having a form of godliness. और अगर देखिए कि ऐसे लोग जो भक्ति का भेष धरते हैं लेकिन शक्ति को नहीं जानते, ये मरे हुए सॉकेट है। You know, I was so. मैं हमेशा इस बात को विश्वास करता हूँ, इस बात से मैं छू जाता, जब बहन ने मुझे अपनी गवाही बताई, But the Lord, yeah, she's. उनकी कैंसर थी और परमेश्वर ने ठीक किया, और तब से वो उसके अंदर आग है। परमेश्वर भलाई है, परमेश्वर वास्तविक है, परमेश्वर तरीका है। और प्रभु हमारी बहन के लिए कर सकता है तो मेरे लिए कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना होगा कि आप उस पावर से जुड़े रहिए और आपकी देह आपकी अंगीकार को सुनेगी। उस अंधे व्यक्ति के समान रहिए जो सभा में आया था, और भाई ब्रैनम ने जब उनके लिए प्रार्थना की और कहा कि आप चंगे हो चुके, और फिर से गया, लेकिन वो फिर से अंधा था, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं था। भाई ब्रैनम के पास आके भाई ब्रैनम कहा कि तुम चंगे हो चुके, और भाई ब्रैनम ने उसके रवैये को बदल दिया। यहाँ कहीं भी क्या हो सका, परमेश्वर की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, परमेश्वर ने मुझे पूरा कर दिया है, हालेलुया। Making fun of him. और सब लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे कि, और वो नाई की किरचे में बैठा कि तुम वही इंसान हो कि तुम कहते हो कि प्रभु ने चंगा किया, और उसी वक्त उसकी आंखें खुल जाती है, और आधा वो साबुन लगा हुआ है वहां पर, और वो दौड़ के बैठ जाता है, और नाई उसके पीछे कि मेरा टॉवल दीजिए। वही विश्वास है जो आपके लिए काम करता है। Connected, amen. जब आप कनेक्टेड होते हैं, Godliness, amen. And सिर्फ भक्ति का भेष नहीं धरते, और परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह का लाजुकाने के हिस्सा है, वचन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वचन कभी टल नहीं सकता। वो वही सामर्थ को पैदा करेगा जो उसने की थी। हालेलुया, amen, amen. मैन आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर भला है। Let that soak down into that church. और उस कलीसिया के अंदर उसको, जो तांबे की तार है जो कि सुचालक है, और रबर जो होता है वो सुचालक नहीं होता है। हमें रोधक नहीं चाहिए, हमें सुचालक चाहिए। But what we want is हमें किस बात की आवश्यकता है कि एक नया जन्म प्राप्त किए हुए परमेश्वर के बेटा और बेटी, स्त्री और पुरुष, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सके। Bible says बाइबल बताती है but we are doers of the word. आप केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उसमें चलने वाले हो। But there's just something about that character. और कुछ बातें हैं, You know, some people you meet. कुछ लोग होते हैं जब आप उनसे मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, कैसे, It's like कुछ लोगों को मिलते हैं तो वे be around them. एक शहद के जैसा है कि आप उनके साथ, एक मधुर आत्मा होती है कि आप उनके करीब रहना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं। A character like that. और वैसे चरित्र आप बनिए कि लोगों को वो आपकी तरफ आकर्षित कर सके। Vain reasons, amen. But there's और कुछ ऐसे दूसरे कारणों के लिए, लेकिन आपकी अंदर जो अभिषेक है उसके चलते वो आपको, वो आपसे आकर आपसे चाट सके। आमीन। जैसे कि छोटे भालू के बच्चे के जैसा, जैसे वो पूरा शहद से भरा हुआ था तो वो उसको चाटने लगे। oh my. ओ प्रभु की स्तुति हो। Just because. आमीन। But there's just something about that character that you just love to. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे चरित्र होते हैं कि आप उनकी उपस्थिति में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक अपना जो होता है, एक आप जनरेटर है, आप अपने अंदर से एक सामर्थ को जनरेट कर रही है, एक अभिषेक को जनरेट कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे होते हैं। दो ही आत्मा होती है, एक परमेश्वर की आत्मा है और ये मसीह विरोध की आत्मा। इसलिए आप देखिए, जो भी भली बातें हैं, जो भी शुद्ध है, ये सारी बातें हैं, तो इसी पर आप मन लगाइए। इसलिए नम्रता और मधुरता, इन्हीं बातों पर मन लगाइए। यही है जो शैतान को हिला देती है। और मोटा के अंदर हम देख रहे हैं कि इतनी सारी आवाज है और सब परमेश्वर के लिए चिल्ला रही है। और जब हम देखते हैं कि कुछ लोग भले लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोगों के करीब भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसा वातावरण होता है, उनके खिलाफ कुछ नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो उनके आसपास का वातावरण लोग पसंद नहीं करते। इसलिए आज चाहिए कि हम उस वातावरण को तैयार करें। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं नहीं,
मसीह जो मुझ में जीता है। हमें उस स्थान पर आना चाहिए कि लोग गलती करें कि आपको मसीह समझ बैठे। भाई ब्रैनम ने बताया कि मसीह होना कैसे होता है। बिली पॉल बताते हैं कि एक सबसे बड़ी गवाही वो ये थी मेरे पिताजी के बारे में कि वो अपने शत्रु और मित्रों में कोई फर्क नहीं करते थे, सभी को समान समझते थे। प्रभु हमें ऐसा ही करे कि हम इतने मधुर बन सके। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए इलेक्ट्रिक वायर को लगाने का क्या मतलब होगा अगर वहां पर कोई जनरेटर ही नहीं है, कोई करंट ही नहीं है, तो डेड मरी हुई तार होगी। इसलिए सारी तार जो है तार कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं है तो मरी हुई तार है। इसलिए ये मीटिंग इसलिए है ताकि आपको कनेक्ट कर सके, क्योंकि आइए सारी बातें तैयार है, कनेक्ट हो रही है उसके साथ। आइए, परमेश्वर ने मेज को तैयार किया है, आइए और उसके साथ भोज करें, मसीह के साथ कनेक्ट रहिए। हमारी जीवन, हमारी भावनाएं, सारी हमारा मन उसके साथ कनेक्ट हो सके, और परमेश्वर यही चाहता है हमसे। और फिर तब वो पुनरुत्थान की सामर्थ को पैदा करेगा। एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो इसके बैंक में पैसे, लेकिन वो चेक लिख नहीं सकता, और दूसरा व्यक्ति होता है जिसके पैसा नहीं है बैंक में, लेकिन वो चेक लिख सकता है। और नबी ने कहा दोनों को एक साथ लाइए। जब इन दोनों को एक साथ लाएंगे, और पेंटिकोस्टल पवित्र आत्मा में जो दावा करते हैं उनके पास है, और जो अपने नाम को लिख सकता है वो चेक पर, वो पेंटिकोस्टल है। और तब वो चेक जो स्वर्ग के बैंक के द्वारा पहचाना जाएगा, वो रिटर्न नहीं आएगा, चेक बाउंस नहीं होगा। परमेश्वर ऐसी कलीसिया को देख रहा है। मुझे ये पसंद है इज़िकियल की कहानी। एक 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 खाई सूखी हड्डियों से भरी हुई थी, और परमेश्वर का वचन इज़िकियल के पास, क्या ये मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकते? पर मैं नहीं जानता प्रभु, भविष्यवाणी कर। और बहुत से बार हमारी जीवन इतनी सूखी हुई होती है, हमें लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन इससे कनेक्ट हो जाइए, और ये जो ये हड्डी वो हड्डी के साथ जुड़ गई, पैर की हड्डी हाथ की हड्डी के साथ। जब उसने कहा, और उस खाई के अंदर वो ऐसी हलचल आई, और वो खोपड़ी और गर्दन की हड्डी के साथ, गड्डी हड्डी के साथ, कंधे की हड्डी के साथ, और वहां पर एक सेना तैयार हो गई। और वो हड्डियां खोजने लगी कि मेरा सिर कहाँ है, मेरी घुटना कहाँ है, और वो खड़े हो गए। इसलिए परमेश्वर केवल उन हड्डियों का ढांचा के साथ केवल काम नहीं करता है। उसने कहा फिर से भविष्यवाणी कर, और उनके ऊपर मांस आया, और वो फिर खड़े, नहीं नहीं नहीं, अभी भी कुछ कम है। और ये ज़ॉम्बी के जैसे लिख रहे हैं, मांस है और हड्डी है, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा आई, आप फिर से एक बार भविष्यवाणी कर, और एक महान सेना बन गई। हालेलुया। परमेश्वर भविष्यवाणी कर सकता है आपके जीवनों पर इस शाम। और हम क्या, और इसके साथ हम क्या करें जो मसीह कहलाता है। नबी कहते हैं कि ये एकत्रीकरण का समय, कलीसिया एकत्रित हो रहे, राष्ट्र एकत्रित हो रहे, ये परमेश्वर और उसके दुल्हन का एकत्रीकरण का समय है। और मैं इसे आदर के साथ कहता हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि मसीह की दुल्हन बुलाई गई है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं, मैं आप भाई ब्रैनम को आमीन कह सकता हूं इस बात के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के राज्य में उसका मोहर बंद हो चुका है, और अब गति की है, लेकिन वो यांत्रिक है, लेकिन गति के लिए रुकी हुई है, ताकि उसे इस पृथ्वी स्तर से उठाकर महिमा रैप्चर में ले जा सकता है। मैं पूरे हृदय के साथ कह सकता हूँ कि जी हाँ श्रीमान, मैं तो तैयार होना चाहता हूँ। जब वो आए खोजने के लिए तो मैं तैयार होना चाहता हूँ, और मैं उस अय्यूब के समान होना चाहता हूँ जो पुराने समय का अय्यूब था। भाई ब्रैनम ने संदेश प्रचार किया, परमेश्वर ने उससे कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि डाली? क्या ही सराहना थी कि वो सिद्ध मनुष्य था, राजा और प्रधान आते थे उसके पास, और इन बातें जो होती थी, ये सारी बातें घटित होती थी। यूहन्ना, और उसने कभी भी परमेश्वर को न्याय नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, हालांकि वो सब कुछ लिया, फिर भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। और अंत में परमेश्वर ने मोहर को अय्यूब पर प्रकट किया, और उसने कहा मैं जानता हूं। और अय्यूब ने कहा हालेलुया। मेरी कलीसिया क्या कहती है, ये क्या कहती है? मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने उस पुनरुत्थान को देखा है। परमेश्वर जानता है कि आपको कहां पर खोजे, और परमेश्वर आपके बारे में बढ़ाई करे ऐसे स्थान में, क्योंकि आप आपका पुनरुत्थान होने वाला है। हालांकि एक खाल के मरने जाने के बाद भी मैं फिर से इस देह में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। क्या ही प्रतिज्ञा है।
आमीन और आमीन और आमीन। ये आखिर एकत्रीकरण का समय है दुल्हन के लिए, और वे उस गति के लिए रुके हुए जो पृथ्वी से उठाकर उस महिमा में रैप्चर में ले जाएगा। मैं इसे पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। जी हाँ श्रीमान। और इस कलीसिया का फिर से, कलीसिया की गति की क्या है, उसको पवित्र आत्मा का फिर से भरा जाना है। और जो सिरे का पत्थर है वो अपनी देह से जुड़ जाएगा, क्योंकि सिर का पत्थर नीचे आ रहा था। ये रैप्चर क्या है? चिल्लाहट, ललकार और प्रधानदूत का शब्द। लेकिन ये नबी कहता है कि इस पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो रुके हुए। जब सिर और देह एक साथ एकत्रीकरण में आएगी तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की संपूर्ण सामर्थ हमें फिर से उठाएगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जो मसीह में मरे हैं, जो हजारों साल से सोए हुए, वे उसकी पवित्रता की सुंदरता में फिर से उठेंगे और आसमान में उड़ान भरेंगे। और ये गति की पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और इसी की हमें आवश्यकता है। आपके पास बहुत अच्छी कार हो सकती है, और जीएमसी या इस ब्रांड की कार, बीएमडब्ल्यू या कैडिलैक, कोई भी कार होने दीजिए, और उसके पास ईंधन है लेकिन उसके बाद स्पार्क नहीं है तो कहीं भी नहीं चला जाएगी। हालेलुया। इसलिए और आपको इस समय वो प्लग इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है जो इलेक्ट्रिक कारों के लिए। और इसलिए कलीसिया को गति की और यंत्र की दोनों की आवश्यकता है। परमेश्वर की आत्मा जब चलती है ताकि उन बातों को करने के लिए जो उसने किए, तो वो 16 सिलेंडर की कार जो दुल्हन उसमें बैठकर आगे बढ़ेगी। यूहन्ना 14:12 में वो काम जो मैं करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करने वाला इसे बढ़कर करेगा, और मैं उसको अपनी गतिकी का चार्ज दूंगा उसकी यंत्रिकी में। हालेलुया। आमीन। और संसार इसके सामने खड़ा नहीं रह सकता कि मैं उनको अंतिम दिन में फिर से खड़ा करूंगा। ये इस तरह का संदेश है कि यंत्र की और गति की एक साथ आके ये तो सूर्य का उदित होना है। और यंत्र की गति की बना कोई मतलब उसका अच्छी बात नहीं है, कोई काम नहीं है। इसलिए आप देख सकते, आप चिल्ला सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन अगर आपके अंदर स्पार्क नहीं है तो आप वहां नहीं जा सकते। परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सूर्य के उदित होने इस संदेश के अंदर कहते हैं वहां पर एक पुनरुत्थान है और परमेश्वर की वास्तविक सामर्थ यंत्र की और गति की। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आत्मा है जो जिलाता है, ये तो स्पार्क है जो आग है जो जिलाता है। इसलिए लूथर के पास यंत्रिकी था, क्योंकि उसके समय के लिए वो पवित्र आदमी। ये जॉन वेस्ली के पास अपने दिनों में था, पेंटिकोस अपने दिनों में उनके पास था, लेकिन हमारे दिनों में क्या? ये अलग समय है जब कलीसिया संपूर्ण रीति से बढ़ेगी और मसीह से मिलने के लिए तैयार होगी, क्योंकि हर एक आशीष की प्रकटीकरण जो बाइबल में लिखी हुई है वो एक महान देह के अंदर संचालित होगी, और वे ऐसे लोग होंगे जो आराधना करते हुए। इसलिए वो आपकी कलीसिया में आना चाहता है, अपनी देह में आना चाहता है, जैसे कि उसने जब वो पृथ्वी पर थे उन्होंने अपने दिनों में किया था। जब वो पतरस और यूहन्ना वहां पर जा रहे थे और लोग पहचान सकते थे कि ये तो यीशु मसीह के साथ थे, यूहन्ना और याकूब, पतरस। और जब वो उस मंदिर के पास आए कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है, वे जानते थे उनके पास है, क्योंकि ऊपरी कोठरी में उनके पास सामर्थ मिली थी। मेरे पास चेकबुक नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है और क्रेडिट कार्ड से भी उत्तम है, मैं तुम्हें एक चार्ज देता हूँ। उस जन्म से लंगड़े जो उसको चार्ज दे दिया और वो ये तुरंत ही चंगा हो गया। और हर तरफ ये बात पहुंची कि पतरस और यूहन्ना अब उनके अंदर आग चल रही है। पतरस और जॉन आ रहे थे तो वो लोगों को वहां पर कतार में लगाते थे ताकि बस उनकी छाया उन पर गिरे, और वो खड़े हो रहे बीमारी से चंगे। कल्पना कीजिए, केवल छाया, ये वो पतरस था। आमीन, आमीन और आमीन। इसलिए लेपालकपन इस संदेश में यहाँ पर देखिए नबी कहते हैं कि परमेश्वर रुका हुआ है ताकि कलीसिया अपने स्थान को ग्रहण करे, अपने आप को प्रकट करे। यही वो संदेश है। ये 8 दिन का संदेश यही है, ताकि वो अपने आप को हमें प्रकट करे, ताकि हम एक हो जाए और ऐसे प्रकार से चले कि वो कहने का, ये देखिए मेरी आत्मा इनके अंदर अद्भुत रीति से बह रही है, और मैं इनको लेपालकपन में रख सकता हूँ और अपने आप को प्रकट कर सकता हूँ। और उनसे स्वर्गदूत के जरिए भेंट कर सकता हूँ। कल्पना कीजिए, परमेश्वर चाहता है कि उस लेपालक पुत्र चाहिए जो कि उसको प्रकट कर सके।
वो कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र के प्रकटीकरण, और जब वे जाएंगे और जब वो कहेंगे, जो भी कहेंगे वो बिल्कुल, वो जो कहेंगे वो मसीह को प्रकट करेंगे। और उसको कैसे हम परख सकते हैं? क्योंकि वो वचन के साथ है या नहीं, उनके जीवन वचन के साथ है या नहीं। वचन के साथ बने रहिए। और किसी भी व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं क्या वो वचन के साथ है या नहीं? क्या वो बोलता है तो वचन के साथ है या नहीं? अपनी आइडिया और अपनी बातें अपने प्रकाशन को दे रहे। यदि जीवित परमेश्वर की कलीसिया, नबी बता दे, इस जीवित परमेश्वर की कलीसिया के अंदर वो सामर्थ्य जो सारी बीमारी से आपको चंगा कर सकती है। आज इस दिन कलीसिया की, जीवित परमेश्वर की कलीसिया के अंदर आज सारी परीक्षाओं पर विजय पाने की सामर्थ्य है। सारी परीक्षाओं पर विजय पाने की सामर्थ्य है। वो जो तुम है वो इस संसार में उससे बड़ा है। आपकी परीक्षा जो है उससे बड़ा है। परमेश्वर उतनी आपको परीक्षा में नहीं डालेगा जितना कि आप सह नहीं सकते। लेकिन वो जो परीक्षा है आपके लिए बच निकलने का मार्ग बनाती है। और परमेश्वर की जीवित कलीसिया के अंदर वो सामर्थ्य है जो पाप को बदल सकती है और उसे फेंक कर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर सकती है। यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर जो भी तुम मांग चाहोगे, मेरे नाम से मांगोगे, वो आपके लिए हो जाएगा। क्या ही प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर हमारा वो नहीं है जो झूठ बोल सकता है। उसका वचन हाँ और आमीन है। और थोड़ी देर रह गई और संसार मुझे नहीं देखेगा, मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम में होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र आत्मा के मंदिर हो? इफिसियंस 2 में कहता है, आप जो एक पाप में मरे हुए थे और अधर्म में मरे हुए थे, उसने तुम्हें जिलाया। और अब वो जो दूर थे उसने अपने लहू के दौरान करीब लाया है। अब आप कोई अजनबी नहीं है। आप कोई अजनबी नहीं है। आप तो परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। और आप उस प्रेरित और भविष्यवक्ता की नींव पर बनाए जाते हैं। और मसीह खुद हमारा वो सोने का पत्थर है। और हम एक साथ बनाए गए। और हम एक दूसरे की हमको आवश्यकता की है, क्योंकि हम एक साथ बनाए जाते हैं ताकि आत्मा उसके अंदर आकर वास कर सके। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर कोई हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, लेकिन वो उसने हमारे लिए देह को तैयार किया है अपने लिए। हम देख सकते हैं कि और विश्वास, संयम, धीरज जब ये तैयार होती जाती है, वो अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। और जब हम उस अब पत्थर, चोटी के पत्थर को आने के समय में है, उस क्या घड़ी में हम जी रहे हैं। आमीन। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को ग्रहण कीजिए। यीशु की कलीसिया के अंदर जो भी आप चाहोगे, ये मेरे नाम से मांगोगे और तुम्हारे लिए वैसा ही किया जाएगा। क्या ही घड़ी है। इसलिए आपको व्याकुल होना चाहिए। प्रभु मेरे पास एक आपको कहना चाहिए, प्रभु यीशु, आपने कहा है आपका वचन खाली नहीं लौटता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति था, जब एक दिन उस अपने पड़ोसी के पास जाता है आधी रात को और खटखटाता है। और पड़ोसी कहता है कि बहुत देर हो चुकी है। फिर से एक बार खटखटाता है। वो कहता है कि चले जाए, मेरे बच्चे सोए हैं। फिर से खटखटाता है। क्या बात है, क्या चाहिए? बाइबल बताती है क्योंकि उस पड़ोसी ने इसलिए नहीं दिया कि वो पड़ोसी है, लेकिन वो हमेशा खटखटा रहा था। वो ना जवाब सुनना नहीं चाह रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, मैं उस व्यक्ति के समान बनना चाहता हूं कि प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है मुझे पवित्र आत्मा देने की, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। भाई उस बड़ी रॉबिन्सन के जैसे उसने कहा, ओ मुझे वो पवित्र आत्मा दीजिए। मैं शत्रु के साथ तब तक लड़ते रहूंगा यदि मुझे मरना पड़े। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा चाहता हूं, मैं यहीं पर रहूंगा जब तक कि आप नहीं आते। उस किस्म का दृढ़ निश्चय हमें चाहिए। और दृढ़ निश्चय पर नबी ने काफी संदेश प्रचार किए। परमेश्वर चाहता है कि अपनी कलीसिया के साथ ऐसा जो खटखटाएगा उनके लिए द्वार खोल जाएगा। हमारे पास और ये कुछ भेद है, यदि आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा। यदि वो बालक अगर रोटी के लिए मांग करता है तो उसे पत्थर नहीं देंगे, अगर मछली मांगता है तो उसे सांप नहीं देंगे। तो कितना अधिक वो स्वर्गीय पिता, कितना अधिक हमारा स्वर्गीय पिता देना चाहता है पवित्र आत्मा उनके लिए जो मांगते हैं, जो चिल्लाते हैं। जैसे उस स्त्री के जैसे जो उस बुरे न्यायाधीश के पास गई, उसने कहा मेरा न्याय, मुझे न्याय दे।
उसने कहा, appointment, go. उसने सेक्रेटरी ने कहा तेरा अपॉइंटमेंट नहीं तो चले जा। दूसरे बाद दिन फिर आई। Understand you must make an appointment. Say, उसने कहा तुझे समझ में नहीं आता कि तुझे अपॉइंटमेंट, उसने कहा नहीं मुझे न्यायाधीश से मिलना है। बाइबल बताती है कि लोगों ने उसकी, but वो because of परमेश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन इसके निरंतर इस विधवा के आने के जरिए, यदि आपके पास हो सकती है ऐसी स्थिति होगी कि मेरे मेरे यहाँ पे कोई दर्द है और मेरी बैक कमर में दर्द है, लेकिन आज रात को मैं प्रार्थना करते, आज रात को प्रार्थना करके चंगाई नहीं मिलती तो मैं कल फिर आऊंगा कि प्रभु फिर से एक बार, और आज कल चंगाई नहीं होती तो मैं फिर से अगला सप्ताह आऊंगा, अगले सप्ताह नहीं तो फिर अगले महीने आऊंगा, लेकिन जब तक कि मैं आते रहूंगा क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है परमेश्वर, आप खोजिए और आपके मिल जाएगा, मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। प्रभु मैं आऊंगा, आप मेरे हृदय को जानते हैं, हम मेरी पत्नी और सभी को, मैं इस बात को थामे रहूंगा और आप मांगते रहिए, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है। Amen. आमीन और आमीन। So Brother says, now one closing remark. भाई ब्रैनम, मैं इस समाप्ति में इस टिप्पणी को देना चाहूंगा। Now, to you people, it's absolutely essential, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए compelling, and compulsory that you receive the Holy Ghost now. कि आपको पवित्र आत्मा मिलना ही चाहिए, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, क्योंकि आप पवित्र आत्मा नहीं है तो आप पुनरुत्थान में नहीं आ सकते। क्या ही घड़ी में हम जीते हैं, Essential. It's not. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वैकल्पिक नहीं है, ये ऐसा नहीं कि होना अच्छी बात है, ये महत्वपूर्ण है। Oh God, help us. हालेलुया, प्रभु हमारी सहायता करे, ये महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों बहनों, Holy Ghost will not go. क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर आप कहीं भी नहीं जा सकते। आमीन। Something that's compelling. It's something that attracts your बहुत सी बार ये बात या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, irresistible way. और ये ऐसी हमारे अंदर ऐसी तड़प होती है, Necessary. It's extra ये बहुत ही जरूरी है, vital. It's crucial. महत्वपूर्ण है कि हमें पवित्र आत्मा मिले। Nice to have. ये वैकल्पिक नहीं है कि हाँ पवित्र आत्मा बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं, आपको तो होना ही चाहिए, अवश्य तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। यही तो प्रभु ने कहा है। Vision. He says, don't पतमुस टापू के दर्शन में कहते कि यूहन्ना इस बात से डर मत, जो सब कुछ मैं हूं उसका तो उत्तराधिकारी है और मेरी सारी सामर्थ तेरी है। my omnipotence is मैं जबकि तेरे मध्य में खड़ा हूं, मेरी सर्व सामर्थ तेरी है। मैं तेरे पास डर और असफलता लेकर नहीं आया हूं, वरन मैं तो तेरे पास प्रेम और साहस और सामर्थ को लेकर आया हूं। power is given unto me and it is yours. सारी सामर्थ मुझे ही दी गई है और ये तेरे ही उपयोग के लिए। तू वचन बोल और मैं उसे पूरा करूंगा। This is my covenant. यह मेरी वाचा है और ये विफल नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। Promise. क्या ही प्रतिज्ञा है। Don't fear. मत डर यूहन्ना, छोटी झुंड मत डर, जो मेरी सामर्थ है, You are heir to you can. आप इसके वारिस है। I will perform it. आप शब्द को बोलिए, मैं इसे पूरा करूंगा। Because she is क्या ही महान बात है। husband and wife together. Amen. और पति और पत्नी अब एक हो चुके हैं। आमीन। I think in my introduction video I said, मेरी all things मेरी are ready at the fire fall. और मैंने अपने उस वीडियो में कहा था कि सारी चीजें तैयार है, अब आपको गिरना चाहिए। Remember in the days of लेकिन इस बात को याद रखिए, नूह के दिनों के समय rain that saved वही बारिश, वही नूह था, the world. उसी पानी ने लोगों का न्याय किया। I heard this morning about the first और हमने सुबह सुना था वो जो आग जो हो रही है कि ये आग की भट्टी के समान जलाया जाएगा walk on the ashes of the और धर्मी लोग इनकी राख पर चलेंगे। Jesus says, remember Lot's wife. और अंत के समय में यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को याद कीजिए। Ministry, और यह मनुष्य के पुत्र की सेवकाई के वहां पर एक देह परिवर्तन हुआ था। अब्राहम और सारा, in order for the उनकी एक नई देह मिला, और इससे पहले कि प्रतिज्ञा पुत्र मिले उनको बदलना था। we need a और हम रैप्चर में जाने वाले, हमें एक नया शरीर चाहिए। will be dissolved. और ये इस संसार की देह, जो शरीर की देह, ये बदलने वाली है। That was one part of इसीलिए ये एक भाग है। और अब्राहम और सारा बदल गए, लेकिन दूसरा भाग देखिए तो वहां पर लूत की पत्नी थी और जो सदोम से आई थी, लेकिन सदोम उससे बाहर नहीं निकला था। of the world. हम संसार से बाहर निकले, लेकिन क्या संसार हमसे बाहर निकला है? संसार की चीजें हमसे बाहर निकली है। बाइबल बताती है, संसार और संसार की वस्तु से प्रेम न करो, परमेश्वर के राज की खोजो और सारी चीजें तुम्हारे लिए दी जाएगी। इसलिए ये समय है भाइयों बहनों कि हम व्याकुल हो जाए, व्याकुल हो। Jesus says, remember यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को याद रखिए। came out. वो अब बाहर तो आई थी, लेकिन हृदय अभी भी वही था। जब वो मुड़ गई तो वो में नमक का खंबा बन गए। और सारा के लिए भी देह बदल गया, लेकिन लूत की पत्नी का भी देह बदल गया। हालेलुया। Which one you gonna? आप चुनाव कीजिए, आप कौन से भाग में रहना चाहते हैं, किस प्रकार का देह चाहते हैं। सारी बातें तैयार हैं, आग उतरने पाए।
प्रभु ने हमें तैयार किया है। और इस सभाओं की श्रृंखला में और बहुत ही सुंदर वो वचन पर वचन और यहाँ और वहाँ परमेश्वर के लोगों ने आके मेहनत करके इन बातों को एक साथ ला सके ताकि दुल्हन को तैयार कर सके, एक साथ लाने की कोशिश किए। और हम कह सकते हैं कि प्रभु आग को गिरना, अपनी सामर्थ को ढेल, आप उस आग को भेजिए और हमें हर एक को बपतिस्मा दीजिए उस आग से। क्या आपकी यही आग आपके हृदय की लालसा है? क्या आप तैयार हैं? आपके पास ये अब समय है, लेकिन इसके साथ आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप इसे अनंत गंतव्य स्थान में बदलना चाहते हैं? हमारे पास ये अवसर है। हम देखते हैं और कुछ ऑफर होते हैं कि एक लीजिए एक के साथ 2 फ्री मिलेगा, ये ऑफर है और उसके बाद ये खत्म होगा। तो हम उस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। और एक व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति यीशु के पास आया और कहा कि ये हे उत्तम स्वामी कि मैं आनंद जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा तू जानता है 10 आज्ञाएं और अपने माता पिता से प्रेम करना। मैंने कहा मैं बस लड़कपन से ही सबकी बातें करते आया हूँ। अच्छा ठीक है, तो अपनी सारी संपत्ति को बेचकर यीशु मसीह ने उसको परख लिया था कि उस जहां तुम्हारा मन है वहां धन है, वहां मन भी होगा। आप कलीसिया में जाकर एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन आपका धन कहाँ है? और वो निराश होकर वहां से चला गया क्योंकि उसका धन बहुत ज्यादा था। और उसके बाद वो धनवान तो हुआ, लेकिन एक दिन वो उसको पता चला मैं मरने वाला हूँ। और वो दूत ने आकर कहा आज तेरा प्राण तेरे से लिया जाएगा। और एक सही सवाल पूछा और सही सवाल और उसका सही जवाब सही व्यक्ति के साथ। वो सही स्थान में था सही व्यक्ति से, लेकिन उसने गलत चुनाव लिया। मेरे भाई और बहनों, गलत चुनाव मत कीजिए, गलत निर्णय मत लीजिए। आज रात को हम अपनी सिर को झुकाए और अपनी आंखों को बंद कर रखें। प्रभु मैं सैमसन के साथ बनना चाहता हूँ, जो कि मेरे जीवन में ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं कर रही है, तो आपको भेजिए। फिर से एक बार मैं इस अपने शत्रु के साथ मरना चाहता हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ और फिर से आपकी आत्मा से भरना चाहता हूँ, पुनः भरना चाहता हूँ, क्योंकि सभा मेरे लिए है ताकि हमको तैयार करने पाए, कलीसिया को तैयार करे रैप्चर के लिए। मैं रैप्चर के लिए तैयार होना चाहता हूँ। मैं सारी बातों को पीछे रहना चाहता हूँ और जो मुझे आसानी से पीछे पकड़ती है और इससे ऊपर मैं उठना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही समय के लिए जन्मा हूँ। अब नहीं तो कब होगा, अब नहीं तो कब। आइए हम अपने सिरों को झुकाए और आंखों को बंद करके कहें कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, अब आइए फिर से एक बार मुझे छू लीजिए और मुझे भर दीजिए ताकि मैं उस बातों का अनुभव कर सकूं, उस आसमान से उस सामर्थ का अनुभव कर सकूं। मुझे उठाइए और चलाइए, आत्मा मुझे उठाकर चलाइए, मेरे संपूर्ण जीव को आप भर दीजिए। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। यही क्या ये आपकी इच्छा है? क्या आप अपने हाथ को उठा सकते हैं और कह सकते हैं प्रभु मैं यहाँ पर हूँ? आमीन। मुझे हालेलुया। स्वर्गीय पिता हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, ताकि हम इस महान सप्ताह का भाग बनने सके। बहुत ही सुंदर सभा जो कि आप अपने कलीसिया से क्या चाहते हैं इसका याद हमें दिलाया, ताकि हमें तैयार कर सके। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे गलतियों को। और प्रभु हमारी पाप जो हमने किए हैं, जो कि हमने करना चाहिए और हम नहीं करते हैं उसको, और हमें फिर से आप वो पुनः ताजगी वाली आग को हमारे ऊपर भेजिए, और ताकि हम हर दिन इस बर्तन को हमेशा भरते रहे। प्रभु हम पास्टर सैमुअल को और उनकी पत्नी को, उनकी कलीसिया को आशीष कीजिए जो इतनी सहायता करते हैं, और बहुत से सेवक जिन्होंने अपने कलीसिया को प्रभु बलिदान किया और इतने मील यात्रा करते इस सम्मेलन में भागी हुए। प्रभु में आप उनको आशीषित कीजिए, और जैसे कि प्रभु आपके साथ पहले संबंध नहीं था उससे अच्छा प्रभु बनने पाए, और इन बर्तनों को भर दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर है। प्रभु प्रभु हम यहाँ पर है, और प्रभु हम आपके लिए ऐसे बर्तन बन सके, और आप अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए, और आप हम पर उस बात को प्रकट करें कि एक चट्टान के नीचे और एक चट्टान। प्रभु आज रात हमें सहायता करे कि हम प्रभु इस बात का ध्यान रखें कि सारी आदर और महिमा आपको दे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। और जो ऑनलाइन सुन रहे, स्क्रीन में देख रहे सारे अनुवादक प्रभु और कलीसिया जो यहाँ पर जुड़े हुए, सभी को आशीषित कीजिए।
और एक वही अनुभव, वही अभिषेक को महसूस करने पाए, क्योंकि सामर्थ के लिए कोई दूरी नहीं है। हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, और वो पावर सप्लाई पवित्र आत्मा उनके लिए भी छूने पाए। सारे विश्व भर में पवित्र आत्मा यहाँ पर घूम रही है, और सारे विश्व भर में हर एक को आशीष कीजिए प्रभु। आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। God richly bless you, Pastor Sam. How many love the Lord Jesus? कितने लोग प्रभु Well, यीशु let's से rise प्रेम up करते on हैं? our feet. आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए। If you can go to key D for us. Amen. Wonderful, merciful Savior. बहुत Isn't he wonderful? सुंदर हमारा उद्धार करता है। Wonderful, merciful Savior. Precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. You are the one that we praise. You are the one we adore. You gave a healing and grace. Our hearts always ungrateful. Oh, our hearts always ungrateful. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hungering for. Oh, our hearts always hungering for. Almighty, Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us falling before your throne. Oh, we're falling before your. Everybody sing it. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give a healing and grace. Us always hungering for. Oh, us always hungering for. You are the one that we praise. You
बहुत सी बातें आज रात को Mighty कही things गई, have been said tonight. सामर्थ्य बातों को कहा गया। Thank you. Continue to play, don't stop. Great things have been said. महान बातें आज कही गई। Overheard the मैं hour सारे is हृदय at से विश्वास hand करता हूँ कि वो घड़ी when अब the आ चुकी है true sons and daughters of God जब परमेश्वर के must सच्चे be बेटे और made बेटियां manifested. और जो आज प्रकट होने की आवश्यकता है। कितने लोग इस बात पर And विश्वास it's करते going हैं? to take you and और I ये आप और हम getting होंगे connected to the जो dynamo कनेक्ट again. होंगे उस The Holy जनरेटर Spirit के साथ, who सामर्थ्य comes by पैदा the करने word वाली of मशीन God. के साथ, Amen. जो पवित्र आत्मा Then वचन the के सुनने power से of आता है, God will be और तब discharged परमेश्वर की afresh सामर्थ again. फिर से एक And I बार नई think ताजगी हमारे अंदर देगी। sometimes you get a बहुत से hold of the बार anointing जब and इस a अभिषेक lot आपको of मिलती things है come against it. और बहुत सी And like बातें an आपके विरोध में oil in आती an है, engine, after a run और for a जब while, it ऑयल, gets जब a little तेल इंजन के dirty. अंदर आता है We need a तो वो fresh charge, कुछ a देर fresh चलने के oil बाद from the गंदा हो Holy जाता है, तो Spirit. हमें फिर David से said, पवित्र आत्मा के जरिए "Oh, नया you शुद्ध anoint तेल की my आवश्यकता है। horn प्रभु, with a आप मेरे घर को horn अभिषेक like कीजिए the horn of the unicorn. I shall be और anointed with उस fresh मेरी oil." सींग को Anointed अंदर with फिर fresh से oil, तेल भर hallelujah. दीजिए, And I उस believe ताजगी with भरे all my तेल heart से। that और मैं tonight पूरे the door हृदय has से been विश्वास opened करता हूँ कि for आज दरवाजा anyone that खुला wants to है, get कि जो कोई भी connected back चाहता to है, the अपने आप dynamo से जुड़ना चाहता है, to कनेक्ट होना चाहता है receive उस a touch सामर्थ्य के from साथ, God. वे I think what we परमेश्वर से need उस is स्पर्श a को महसूस कर सकते हैं। reconsecration of our और lives, a हमें फिर से अपने जीवनों को rededication to the समर्पित करने की word of the आवश्यकता है, living God and to the Spirit और of परमेश्वर God, का that जीवित God वचन may और उसकी जीवित आत्मा हमारे dwell अंदर within वास us करने पाए। richly and और परमेश्वर manifest बहुत दाय himself से हमें आशीष दे और mightily, अपने आप को because प्रकट Jesus करे get glory सामर्थ्य when we रूप से, bear क्योंकि much यीशु मसीह fruit. ही। Hallelujah, much fruit. So let's just bow our heads for a इसलिए moment अपने शरीर as को we're हम going to झुकाए कुछ sing that समय के song लिए, again. जैसे Let कि हम इस everybody गीत को pray a दोबारा prayer गाते of हैं। आइए consecration हम to the सब Lord. कोई प्रार्थना I कीजिए और see अपने where आप को I've fallen समर्पित करें। short. I see the world creeping into my life and it's just अब मैं hindered. देख रहा हूँ, आप कोई कह It's सकते हैं कि संसार मेरे अंदर causing a घुसते हुए false आ रहा है charge. और And I want to get ये चार्ज को खत्म reconnected to कर the रहा है, power लेकिन मैं फिर source से कनेक्ट again, होना which is the चाहता हूँ Holy Spirit. उस That बिजली I के may साथ जो feel पवित्र the आत्मा है, presence of God ताकि and परमेश्वर की see the उपस्थिति को word महसूस of कर God सकूं manifest और again परमेश्वर in के my वचन को life. प्रकट होते हुए मेरे जीवन में देखने Hallelujah. पाऊं। Let's हालेलुया। just pray for a moment आइए हम प्रार्थना करें and कुछ समय के लिए। pray. Heart has always hungered for, oh, has Alpha and Omega. Just project that song. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha, hallelujah, and Omega. Raise up your hands to Jesus. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. From the beginning, you are Alpha. Oh, you are Alpha. You are Alpha. Oh, and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. Oh, we
worship you alone. You are worthy to be praised. Say, Lord, I stretch my hand to you. Touch me by the power of God. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. Oh, you are worthy to be praised. Raise up your hands to Jesus. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. I am thine, O Lord. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. Hallelujah. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, draw me nearer, oh, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast done. Hallelujah. Draw me near, oh, nearer, blessed Lord, to thy precious bliss. Consecrate me now, consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Amen. Let my soul look up with the sun for soul, and my way be lost in thine. Oh, draw me near. Everybody, blessed Lord, to the cross where thou hast done. Amen. Draw me near, oh, nearer, blessed Lord, to thy precious name is done. Everybody pray for a moment. We have to pray. Prayer हर कोई changes कुछ समय things. के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना सारी चीजों को बदल देता है। और ये इस वक्त अभिषेक हमारे बीच में है, और प्रार्थना चीजों को बदल देती है। हर कोई अपने सिरों को झुकाए, प्रार्थना करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे कि मेरी परिस्थिति को बदल दे, और मैं फिर से उस जो परमेश्वर की सामर्थ्य से कनेक्ट होना चाहता हूँ, और मेरे जीवन के अंदर जो भी बातें रुकावटें हैं, मैं उससे तोड़ना चाहता हूँ, उस पाप की रुकावट, और फिर से मैं उस सामर्थ्य के घर से जुड़ना चाहता हूँ। Oh God, ओ प्रभु, blessed Lord, to thy cross where thou hast done. Oh, draw me near. Pray, pray, pray. Prayer will change your situation प्रार्थना tonight. कीजिए, प्रार्थना परिस्थिति को बदल देगी। प्रार्थना कीजिए। Thy precious bring his son.
I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day, but still I pray till I'm found. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Lord, lift me up and let me stand. Faith on hell, a stable land, a higher plane than I have found. Don't plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay, desires to stay where doubts are right. Oh yes, and fears dismay. Though some may dwell where disabound, my prayer, my aim is on your grace. Lord, lift me up, Lord, lift me and let me stand. By faith on heaven, by faith on heaven, stable land, hallelujah, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher. All things are right enough. सारी चीजें तैयार है। I want to scale the utmost high. Amen. And catch a glimpse. Oh yes, all glory bright. By still I pray, by still I pray, till heaven I found. My happily nothing too higher. Every oh, lift me up, amen, and let me stand, and let me stand by faith on heaven. Be stable and amen, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Somebody give thanks and praise to Jesus कोई तो Christ, प्रभु यीशु के लिए who धन्यवाद और is स्तुति worthy दे, of praise. जो आराधना और स्तुति के योग्य है, और वो हमारे बीच में उपस्थित है पवित्र आत्मा के जरिए और अपने वचन के प्रकटीकरण के रूप में। वो आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाइयों बहनों, क्या आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे कि आपको चिल्लाने की आवश्यकता है और नाचे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। और मेरे पीछे कहिए कि हे मेरे पिता, ईश्वर की पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम औरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा और सामर्थ आप ही के युगान युग। आमीन और आमीन।
यीशु की महिमा हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डेविड गोंजालेस पास्टर के लिए एक अद्भुत संदेश के लिए जो आज हमारे लिए दिया है। और याद कीजिए कल आखिरी सभा है और हार्वेस्ट मिशन बाइबल चर्च में हम मिलने वाले हैं सुबह 10 बजे भारत के समय के अनुसार आज शाम। और आइए परमेश्वर की आग को अपने हृदय में लेते हुए आइए। और पहले ही उसकी आत्मा से अभिषेक हो चुके हैं और होने पाए कि परमेश्वर की आग दोबारा आपके ऊपर उतरने पाए। देखिए सारी बातें तैयार है। और कल मैं इसके विषय में बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से मुख्य विषय प्रभु ने मेरे लिए दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि अपनी दुल्हन तैयार हो और निश्चित रूप से हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए ताकि वो तैयार हो सके। आप अपने भाइयों को देखते हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे, तो आप उसने क्या किया है वो छोड़ दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप उसे आगे ध्यान देखिए, आगे देखिए उस महिमा के लिए, इसलिए उसकी सहायता करे और अपने भाई और बहनों की मदद करे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। और जब ऐसा करने से आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और नीचे कुछ रिसेप्शन होगा और हमारी सहभागिता होगी और किसी से हर एक से एक दूसरे से पूरे दिल से प्रेम कीजिए जब तक कि हम दोबारा कल 10 बजे नहीं मिलते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पास्टर हमसे जुड़े हुए थे, उस समय के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप परमेश्वर उस गीत को बजाते रहिए। भाइयों बहनों, क्या आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? हमारे भाइयों बहन, हमारे पास भाई बीपी मिश्रा, पास्टर कुजूर को मैं देख रहा हूँ यहाँ, पास्टर डैनियल पासोस घाना से, पास्टर आकरम रोशन पाकिस्तान से, पास्टर लोलस कुजूर भारत से, पास्टर इवेस कुमारो, पास्टर राजेंद्र कुजूर और सहायक पास्टर जोशु टोरिस को मैं देखता हूँ और इवेंजलिस्ट मॉर्टन मपीरी को देखता हूँ। पास्टर जोशुआ मतांजी है और मैं देखता हूँ इवेंजलिस्ट भाई फिलिप तांबे, इवेंजलिस्ट वसीम अकरम को देखता हूँ, पास्टर आइजल कोकर को देखता हूँ, पास्टर डोमिनिक, प्रेरित मैकलॉलिन आइजैक्सन, पास्टर प्रिंस बियोका, पास्टर होशे गार्सिया, पास्टर आंद्रे प्रतीत, पास्टर रॉन मिलेवो, पास्टर डेविड गोंजाल्वेस, हालेलुया। और उस देश को देखें जो ऑनलाइन यहाँ पर जुड़े हुए थे। मैं भारत को देखता हूँ, ब्राजील को देखता हूँ, फ्रांस को देखता हूँ, घाना को देखता हूँ, केनिया से जुड़े हुए, और लग्जमबर्ग से, पाकिस्तान से जुड़े हुए, साउथ अफ्रीका से है, वेनेजुएला से, कनाडा और कुछ कलीसियाएं, ब्राइट चर्च पाकिस्तान से, इंग्लिश चर्च, कटोर की कलीसिया और सभी अनुवादकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई पियर, भाई जैक, भाई फिलिप, भाई मॉर्टन, भाई रफेल, भाई जोश, भाई विक्लिफ, भाई सियरो, भाई जोशुआ और भाई हमारे मित्र भाई एजल। प्रभु सबको आशीष दे। यीशु मसीह की दुल्हन जिनका नाम यहाँ पर नहीं जिक्र किया लेकिन हम जानते वो यहाँ पर है जो संदेश को सुन रहे। प्रभु आपको भी बहुत से आशीष दे। सारी परमेश्वर की आशीष से आपको मिले, यही मेरी प्रार्थना है। आइए फिर से एक बार उस गीत को हम गाएंगे। Lord, my feet on high, the Lord bless you. We are dismissed. God, lift me. प्रभु आप सबको आशीष दे। सभा समाप्त हो चुकी है। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
Lord bless you and keep you. प्रभु आपको आशीष दे और आपको The संभाले Lord let रखे। his face shine upon you and give परमेश्वर you अपना his मुख का प्रकाश peace. आप पर चमकाए और The अपनी Lord शांति lift up his आपको दे। countenance upon you. May his peace and his glory be upon you. In the परमेश्वर name की of the शांति और Lord महिमा Jesus आपके Christ. पर बनी रहे Amen. यीशु मसीह के नाम में। We are आमीन। dismissed. I'll see अब you in सभा the समाप्त हुई basement. है। आमीन। Oh yes, Lord lift me up and let me stand by faith on him, with stable land and your place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Abraham, oh Abraham, some blessings are mine. Hallelujah, Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning, blessed in the evening, oh Abraham. God bless you, AV team. Amazing work. Hallelujah, Abraham's. Amen. Have some fellowship. We'll see you in the basement. Oh, Abraham's blessings are mine.